जय सियारा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विवीपैरस है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ। रिप्रोडक्शन इवेंट इन ह्यूमन, गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, sperm in male and ovum in female, insemination transport of sperm in female genital tract, insemination transport of sperm in female genital tract, fertilization fusion of male and female gamete to form zygote, fertilization fusion of male and female gamete to form zygote, implantation formation of blastocyst and its attachment to endometrium, inner layer of uterus, gestation, embryonic development 9 month का होता, parturition, delivery of baby, lactation, breastfeeding of infant, lactation, breastfeeding of infant. Testes are present in abdominal cavity initially. Testes are present in abdominal cavity initially during the latter half of the month. During the latter half of 7 months, they descend into scrotum under influence of testosterone. Male reproductive system, it is located in pelvis region. Primary sex organ, testis, ये सिंगुलर वर्ड है, टेस्टिस ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन होता, फॉर्मेशन ऑफ मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ये मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्टेशन, मैचुरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, transport, maturation and storage of sperm. Accessory duct, external genitalia और accessory gland, accessory duct, external genitalia, 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 accessory duct, external genitalia, accessory gland, accessory duct, external genitalia, accessory duct, external genitalia, accessory gland, बिल्कुल। Testes lie outside the abdominal cavity, scrotum में, testes lie outside the abdominal cavity, ये scrotum में, ठीक है। Extra abdominal, it provides 2 degree to 2.5 degree Celsius, lower temperature than body temperature, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल होता है। It provides 2 degree to 2.5 degree Celsius lower temperature than body temperature. It provides 2 degree to 2.5 degree Celsius lower temperature than body temperature spermatogenesis के लिए, ठीक है। Crypt orchidism, hidden testis, inguinal canal और यहाँ पे हो गया spermatid cord, ये हो गया यहाँ पे इंग्यूनल कैनाल, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया स्पर्मेटिक कॉर्ड,
ब्लड वेसल्स, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है स्पर्मेटिक कॉर्ड में? ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, क्रीमास्टर मसल्स, वास्ट डिफरेंस, कनेक्टिव टिश्यू। स्पर्मेटिक कॉर्ड, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, क्रीमास्टर मसल्स, वास्ट डिफरेंस, कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, क्रीमास्टर मसल्स, वास्ट डिफरेंस, कनेक्टिव टिश्यू। ये वास्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है, ये स्क्रॉटम हो गया, ये क्रीमास्टर मसल्स, ये हो गया टेस्टिस, यहाँ पे डायटोस मसल। फॉर मेंटेनेंस ऑफ optimum temperature, if outside temperature is low, for maintenance of optimum temperature in winter season, if outside temperature is low, cremaster muscles, skeletal muscles का ये बना है cremaster muscles, it contract and slightly testis upward as body provide heat, ठीक है। डाटोस मसल्स, ये स्मूथ मसल्स का बना है, कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइटन टेस्टिस, रिंकल्ड एप्रियंस, ओके। ये विंटर सीजन का, ड्यूरिंग समर दिस एक्शन ऑफ मसल्स इज रिवर्स्ड। टेस्टिस it is surrounded by है tunica vaginalis, outer है ये, it is surrounded by tunica vaginalis, ये outer है, partially covers the testis, it is surrounded by tunica vaginalis, outer है, it is surrounded by tunica vaginalis, tunica albuginea, tunica vasculosa, tunica vaginalis outer है, tunica vaginalis ये outer है, tunica vaginalis ये outer है, tunica albuginea ये middle है, फिर tunica vasculosa ये inner है। tunica vaginalis outer, tunica albuginea, फिर tunica albuginea ये middle, tunica vasculosa ये inner है, ठीक है। tunica vaginalis ये outer है, partially covers the testis serous membrane, okay। tunica albuginea middle, tunica albuginea ये middle हो गया, tunica vaginalis outer, tunica albuginea middle, tunica vasculosa inner, ठीक है। tunica albuginea middle में है ये dense irregular connective tissue, tunica vascularis ये inner है, present inside testicular lobule, present inside testicular lobule, blood vessels, tunica vasculosa inner, tunica vaginalis, tunica albuginea, फिर tunica vasculosa ये inner हो गया, ठीक है। present inside testicular lobule, blood vessels है, present inside testicular lobule, हाँ testicular lobule के अंदर ये present है। blood vessels भी है, tunica vasculosa inner है ये, tunica vasculosa ये inner है, tunica albuginea ये middle, tunica vaginalis outer, tunica albuginea middle, tunica vasculosa inner।
ये बाहर का हो गया ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा इनर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गया ट्यूबुलाई रेक्टी, ये गया ट्यूबुलाई रेक्टी ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे रेटिटेस्टिस, नेटवर्क ऑफ डक्ट, ट्यूबुलाई रेक्टी ये हो गया ट्यूबुलाई रेक्टी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गया रेटिटेस्टिस, नेटवर्क ऑफ डक्ट्स, ठीक है, रेटिटेस्टिस, और ये ट्यूबुलाई रेक्टी। फिर ट्यूबुलाई रेक्टी के बाद आता है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आता है, और ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल प्रेजेंट 250 इन इच टेस्टिस, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ओके। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 2 3 इन नंबर, ठीक है। स्क्रॉटम हो गया यहाँ पे गुबर्निकुलम, ओके। फिर यहाँ रेटिटेस्टिस, फिर हो गया ट्यूबुलाई रेक्टी जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से होकर इसमें आ रहा, इसे कहेंगे ट्यूबुलाई रेक्टी, ठीक है। फिर यहाँ पे रेटिटेस्टिस है। फिर उससे आगे चल के गया यहाँ पे वासा इफ्रेंसिया, डक्टस इफ्रेंट, वासा इफ्रेंसिया, डक्टस इफ्रेंट, वासा इफ्रेंसिया, ओके। फिर यहाँ पे ये है कैपुट कॉर्पस कॉर्डल, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, फिर यहाँ पे हो गया कॉर्डल एपिडिडाइमिस, कैपुट कॉर्पस कॉर्डल, ओके। फिर यहाँ पे ये हो गया वास डिफरेंस, ये हो गया वास डिफरेंस, ओके। यहाँ पे देखो टेस्टिस ओवल इन शेप, टेस्टिस ये कैसा है, ओवल इन शेप, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ, ठीक है। इच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 compartment. Each testis is divided into 250 compartment. Testicular lobule. It consists of 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. Okay. Seminiferous tubule ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। मेयोटिक डिवीजन यहाँ पे फिर इससे क्या बना, स्पर्म बना। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल, हाँ मेल जर्म सेल इसका दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल इस पे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे मियोसिस से डिवीजन, मियोटिक डिवीजन होता है एंड देन फिर स्पर्म बनता है, ओके। मेल जर्म सेल इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है फिर इससे स्पर्म बनता है, ओके। यहाँ पे क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली सेल और सस्टेंटिकुलर सेल। एक हो गया यहाँ पे मेल जर्म सेल, ओके, और दूसरा इधर हो गया सर्टोली सेल और सस्टेंटिकुलर सेल, ठीक है, ऐसा कहता है, और नर्स सेल। सर्टोली सेल्स और सस्टेंटिकुलर सेल, सर्टोली सेल ये नर्स सेल है और सस्टेंटिकुलर सेल इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स। सर्टोली सेल और सस्टेंटिकुलर सेल और नर्स सेल। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये दोनों आता है। हो गया मेल जर्म सेल जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, मेयोटिक डिवीजन यहाँ पे होता है, इससे स्पर्म बनता है, ठीक है। और फिर दूसरा यहाँ पे सर्टोली सेल प्रेजेंट है और सस्टेंटिकुलर सेल प्रेजेंट है। सर्टोली सेल और सस्टेंटिकुलर सेल इसे नर्स सेल भी कहते हैं, ओके।
It provide nourishment. It provide nourishment, support and protection to sperm. It provide nourishment, support and protection to sperm. It secrete ABH, androgen binding protein. Androgen binding protein for concentrating androgen. For concentrating androgen. It forms a blood testis barrier. It forms blood testis barrier. It forms blood testis barrier. बिल्कुल. It phagocytose excess cytoplasm of spermatid. और स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बना, इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस. ओके. और ये सर्टोली सेल ये इनिबिन हार्मोन भी सिक्रेट करता है. इनिबिन हार्मोन सिक्रेट करता है. एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टॉप एफएसएस सिक्रेशन. सबसे पहले हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है जीएनआरएच. हाइपोथैलेमस सिक्रेट किया जीएनआरएच. जीएनआरएच एक्ट्स एंड स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच सिक्रेट किया, फिर ये स्टिमुलेट किया सर्टोली सेल और सस्टेंटिकुलर सेल को. एंटीरियर पिट्यूटरी ये एफएसएच को स्टिमुलेट किया. एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच को स्टिमुलेट किया. एफएसएच स्टिमुलेट किया, फिर एफएसएच स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को और सस्टेंटिकुलर सेल को. तो ये सब होता है, ठीक है. और फिर दूसरा इधर एलएच स्टिमुलेट लिडिक सेल. एलएच स्टिमुलेट लिडिक सेल. एफएसएच सर्टोली सेल को, ठीक है. और फिर इधर एलएच स्टिमुलेट लिडिक सेल. लिडिक सेल सिक्रेट्स एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन. LH stimulate leading cell. LH stimulate leading cell. Leading cell secrete androgen testosterone. Leading cells secrete androgen testosterone. Leading cells secrete androgen. Leading cells secrete LH stimulate leading cell. LH stimulate leading cell secrete androgen testosterone. Leading cell secrete androgen. हाँ, leading cell secrete androgen testosterone. यहाँ पे इनिबिन हार्मोन एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी. इनिबिन हार्मोन एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टॉप एफएसएच सिक्रीशन. इनिबिन हार्मोन एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी. इनिबिन हार्मोन एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टॉप एफएसएच सिक्रीशन. हाँ, इनिबिन हार्मोन ये भी सर्टोली सेल रिलीज करता है. इनिबिन हार्मोन एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टॉप एफएसएच सिक्रीशन, ठीक है. फिर यहाँ पे ये है इंटरस्टिशियल स्पेस. यहाँ पे ये हो गया इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल. यहाँ पे ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है. और यहाँ पे ये हो गया सर्टोली सेल. ये कनेक्टिव टिश्यू लेवल का बना हुआ है. ये हो गया यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. यहाँ पे ये स्पर्म प्रेजेंट है. ये स्पर्मेटिड. ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है. फिर यहाँ पे इसके ऊपर ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है. फिर यहाँ पे ये स्पर्मेटिड और ये हो गया स्पर्म. सर्टोली सेल, ठीक है. फिर यहाँ पे ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया. ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है. और ये हो गया स्पर्मेटिड. ये हो गया स्पर्मेटिड, ठीक है. फिर यहाँ पे ये है स्पर्म. Outside seminiferous tubule is intertubular space or interstitial space. Outside seminiferous tubule is intertubular space.
outside seminiferous tubule, outside seminiferous tubule is intertubular space और interstitial space, ठीक है. यहाँ पर लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल, outside seminiferous tubule is intertubular space और interstitial space. यहाँ पे लीडिंग सेल्स प्रेजेंट है, हाँ. इंटरस्टिशियल सेल्स सिंथेसिस एंड सिक्रेट एंड्रोजन, इसमें मैंने लिया था टेस्टोस्टेरोन, हाँ. immunologically competent cells, blood vessels, सब कुछ है इसमें, ओके. accessory duct transport and storage of sperm. 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 accessory duct transport and accessory duct, हाँ, डक्ट का तो काम ही है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म. transport and storage of sperm. seminiferous tubule leads to straight tube. seminiferous tubule leads to straight tubes, tubuli recti. accessory duct transport and storage of sperm. accessory duct transport and storage of sperm, ठीक है. seminiferous tubule leads to straight tube. seminiferous tubule leads to straight tube, tubuli recti, ठीक है. they leads into network of duct retestis. they leads into network of duct retestis. seminiferous tubule leads to straight tube. seminiferous tubule leads to straight tubes, tubuli recti. they leads into network of duct. they leads into network of duct. they leads into network of duct retestis, ठीक है. retestis lead to vasa efferentia. retestis leads to vasa efferentia. ductus efferent vasa efferentia, ठीक है. यहाँ पे क्या vasa efferentia, ductus efferent. it leads to they leave the testis. it leads to highly coiled epididymis. 6 मीटर का है. it leads to highly coiled epididymis जो कि 6 मीटर का. कौन? वासा इफ्रेंसिया, हाँ. ट्यूबुलाई रेक्टी हो गया. यहाँ पे रेटिटेस्टिस
हेरिडिटरी टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया, अब ये कहाँ आया, एपिडिडाइमिस। इट लीड्स टू हाईली क्वालिटी एपिडिडाइमिस जो कि 6 मीटर का है, प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। ये 3 तरह का है, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉर्डल एपिडिडाइमिस। कैपुट वासा एफ्रेंसिया लीड्स इनटू दिस caput vasa efferentia leads into this vasa efferentia leads into this कैपुट में वासा एफ्रेंसिया leads into this, ठीक है। कॉर्पस एपिडिडाइमिस मेन बॉडी है, फिर इधर काउडल एपिडिडाइमिस leads to vasa leads to vas difference, okay। epididymis helps in sperm maturation, epididymis helps in sperm maturation, sperm acquire motility, ability to fertilize an ova, ठीक है। temporary storage of sperm up to 2 month, temporary storage of sperm up to 2 month, epididymis temporary storage of sperm up to 2 month, helps in sperm maturation, sperm acquire motility, और फिर यहाँ पे ability to fertilize an ova, okay। during sexual arousal peristaltic movement of epididymis transfer sperm to vas difference, अच्छा। epididymis and vas difference contain smooth muscles, epididymis and vas difference contain smooth muscles, epididymis leads to vas difference, it ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder, ओके। यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूबल इसके आई, फिर यहाँ पे ट्यूबुलाई रेक्टी, फिर यहाँ पे हो गया रिटिटेस्टिस, फिर इसके आगे वासा एफ्रेंसिया, फिर यहाँ पे एपिडिडाइमिस, फिर इसके आगे वास डिफरेंस। इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, ट्यूबुलाई रेक्टी, फिर से आगे यहाँ पे रिटिटेस्टिस, यहाँ पे ट्यूबुलाई रेक्टी, और फिर यहाँ पे हो गया रिटिटेस्टिस, ट्यूबुलाई रेक्टी, और फिर यहाँ पे रिटिटेस्टिस। इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, यहाँ पे टेस्टिस इनसाइड, ट्यूबुलाई रेक्टी, फिर यहाँ पे रिटिटेस्टिस, ट्यूबुलाई रेक्टी और ये रिटिटेस्टिस, ये इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है, ठीक है। इनसाइड टेस्टिस वास एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है, आउटसाइड द टेस्टिस, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे हो गया सबसे पहले टेस्टिस, ठीक है। ये स्क्रोटम है, यहाँ पे टेस्टिस, ये एपिडिडाइमिस, इसके बाद यहाँ पे ये वास डिफरेंस, इससे आगे जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर के और ऊपर से लूप बनाते हुए इधर एम्प्यूला आया, वास डिफरेंस का एम्प्यूला है, ये वास डिफरेंस का। फिर इधर समाइनल वेसाइकल्स इससे अटैच हो रहा, 2 समाइनल वेसाइकल्स है, समाइनल वेसाइकल्स हो गया। फिर यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट आया, और ये ओपन हुआ किसमें, यूरेथ्रा में ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ओके। और यहाँ पे इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, ओके। फिर यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये 2 है, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये 2 प्रेजेंट है, ओके। ये 2 है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये 2 है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये 2 है, ओके।
फिर यहाँ पे आता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, फिर यहाँ पे पिनाइल यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा। ओके, पेनिस में जो है प्रेजेंट हो गया पिनाइल यूरेथ्रा। फिर यहाँ पे इसके ऊपर था मेम्ब्रेनस और उसके ऊपर था प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो ये टोटल 3 पार्ट है यूरेथ्रा का। ओके, फिर अब इसके आगे आता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो कि आगे चल के ग्लैंस पेनिस बनाता है, ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये 2 है कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा, ठीक है, कॉर्पस कैवर्नोसा। फिर यहाँ पे ये हो गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस कैवर्नोसा हो गया ये, ठीक है। और ये था बीच में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये आगे चल के यहाँ पे ग्लैंस पेनिस बनाता है, ग्लैंस पेनिस बनाता है। कॉर्पस कैवर्नोसा होगा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम हो गया ये, ठीक है, आगे चल के ग्लैंस पेनिस बनाता है। और यहाँ पे ओपनिंग है यूरेथ्रल मीएटस, यूरेथ्रल मीएटस ये हो गया यहाँ पे। फिर 4 स्किन प्रेजेंट, ओके। वॉज डिफरेंस, वॉज डिफरेंस, was difference dilated to form ampulla, was difference dilated to form ampulla, was difference dilated to form ampulla. It joins with a duct, it joins with a duct from seminal vesicle. It joins with a duct, it joins with a duct from seminal vesicle, it joins with a duct, it joins with a duct seminal vesicle. हाँ हाँ, यहाँ पे जो है ये was difference dilated to form ampulla, ठीक है। फिर यहाँ पे it joins with a duct from seminal vesicle and form ejaculatory duct, and form ejaculatory duct, okay। it joins urethra, ये 20 सेंटीमीटर है, it joins urethra, और ये urethra टोटल 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। it originates from base of urinary bladder, it originates from base of urinary bladder of, it originates from base of urinary bladder, okay। Prosthetic urethra 2 to 3 centimeter carries urine, okay। फिर यहाँ पे membranous intermediate urethra, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर का, ये शॉर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पिनाइल यूरेथ्रा, ये अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर है, ये लॉन्गेस्ट है, ये अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर है, ये लॉन्गेस्ट है। और ये दोनों कैरीज यूरिन एंड स्पर्म, ओके। urethra leads to exterior opening through urethral meatus, slit like opening. It is also known as urinogenital aperture, क्योंकि यहाँ पे यूरिन और स्पर्म दोनों यहाँ से निकलता है, ठीक है। पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन या इंसेमिनेशन में हेल्प आता है। प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ स्क्रॉटम, पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, cylindrical erectile organ, penis present in front of scrotum, ठीक है। पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, cylindrical erectile organ made up of 3 cylindrical erectile tissue, cylindrical erectile organ made up of 3 cylindrical erectile tissue, cylindrical erectile organ, ये cylindrical है, erectile organ made up of 3 cylindrical erectile muscles, okay। इरेक्टाइल टिश्यू, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम,
कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस कैवर्नोसा 2 in number, कॉर्पस कैवर्नोसा 2 in number, डॉर्सोलेटरल मासेस, कॉर्पस कैवर्नोसा और हो गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। कॉर्पस कैवर्नोसा 2 in number, डॉर्सोलेटरल मासेस कंसिस्ट ऑफ ब्लड साइनसेस, ठीक है। सर्क्यूमिन क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ प्रिप्यूस। दूसरा इसका हो गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम 1 in number, मिड वेंट्रल पेनाइल यूरेथ्रा, मिड वेंट्रल पेनाइल यूरेथ्रा, मिड वेंट्रल पेनाइल यूरेथ्रा, मिड वेंट्रल पेनाइल यूरेथ्रा, मिड वेंट्रल, ठीक है। ये हो गया पेनाइल यूरेथ्रा प्रेजेंट इन इट, penile urethra present in it. It enlarges anteriorly to form a bulge-like structure, glans penis. It enlarges anteriorly to form a bulge-like structure, glans penis. It is covered by loose fold of skin, foreskin or prepuce. Loose fold of skin, foreskin or prepuce, ठीक है। यहाँ पे दो हो गया, कॉर्पोरा कैवर्नोसा डॉर्सल साइड में है, फिर यहाँ पे वेंट्रल में है, आगे की तरफ है। यहाँ पे पेनाइल यूरेथ्रा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। ये बीच में हो गया यहाँ पे पेनाइल यूरेथ्रा, ये हो गया ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस, आर्टेरियसिस, और ये हो गया यहाँ पे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ओके। यहाँ पे एएनएस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक इजैकुलेशन ऑफ सीमन, ये सिंपैथेटिक है। और पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग कंडीशन में यहाँ पे होता है इरेक्शन ऑफ पेनिस। एसेसरी ग्लैंड समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, समाइनल वेसिकल पेयर्ड एंड कन्वोल्यूटेड कॉइल्ड है ये, ठीक है। समाइनल वेसिकल ये पेयर्ड एंड कन्वोल्यूटेड है, कॉइल्ड, ठीक है। समाइनल वेसिकल, हाँ एपिडिडाइमिस के बाद तो ये था, अच्छा हाँ ये ग्लैंड है ना, एसेसरी ग्लैंड, समाइनल वेसिकल पेयर्ड एंड कन्वोल्यूटेड कॉइल्ड, पेयर्ड एंड कन्वोल्यूटेड कॉइल्ड, ठीक है। प्रेजेंट बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, and anterior to rectum, present behind urinary bladder and anterior to her rectum, okay. secrete viscous secretion, alkaline secretion, ठीक है, 60% है, okay. fructose provide energy, prostaglandin stimulate urine, prostaglandin stimulate uterine contraction in FRT, female reproductive tract. प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन FRT, प्रोस्टाग्लैंडिन stimulate uterine contraction in FRT, female reproductive tract, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रमोट क्लॉटिंग आफ्टर इजैकुलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोस्थेट ग्लैंड सिंगल अनपेयर्ड प्रोस्थेट ग्लैंड
prostate gland, single, unpaired, present at the base of urinary bladder. Prostate gland, prostate gland, single, unpaired, single है ये, unpaired, present at the base of urinary bladder. समाइनल वेसिकल हो गया, समाइनल वेसिकल हो गया, ठीक है. फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गया समाइनल वेसिकल हो गया, ठीक है. फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, अनपेयर्ड, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, सिक्रेट्स मिल्की सिक्रेशन 25% की एसिडिक होता है, ठीक है. सिट्रिक एसिड प्रेजेंट यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन कराता, क्रेब साइकिल परफॉर्म कराता, कैल्शियम 2+ PO4 3-, प्रोफिब्रिनोलाइसिन ब्रेकडाउन क्लॉटिंग, हाँ वहाँ गया है. फिर उसके बाद क्लॉटिंग को ब्रेकडाउन भी तो करना है, तो क्या प्रोफिब्रिनोलाइसिन ब्रेकडाउन क्लॉटिंग. ओके. समाइनल प्लाज्मा एंटीबायोटिक, प्रिवेंट बैक्टीरियल अटैक. ओके. प्रोफिब्रिनोलाइसिन ब्रेकडाउन क्लॉटिंग, प्रोफिब्रिनोलाइसिन ब्रेकडाउन क्लॉटिंग. हाँ. समाइनल प्लाज्मा एंटीबायोटिक, प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, प्रिवेंट बैक्टीरियल अटैक. समाइनल प्लाज्मा एंटीबायोटिक, prevent bacterial attack, give color and order to semen. Seminal plasma antibiotic, prevent bacterial attack. Seminal plasma antibiotic, prevent bacterial attack, give color and order to semen. Copper's gland, bulbourethral gland, bulbourethral gland, paired P-shaped gland, present at base of penis, alkaline secretion, secretes viscous mucus 10%, provide lubrication during coitus. Copper's gland, bulbourethral gland, Copper's gland, bulbourethral gland, paired P-shaped gland, ठीक है. Present at the base of penis, alkaline secretion, secretes viscous mucus 10%, ठीक है. Provide lubrication during coitus. समाइनल वेसिकल में ही हो गया. फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है. और फिर यहाँ पे क्लॉटिंग प्रोटीन. फिर इसमें प्रोस्टेट, ये कैल्शियम 2+, सिट्रिक एसिड रिलीज करता है, PO4 3-, ये है प्रोफिब्रिनोलाइसिन, ठीक है. समाइनल प्लाज्मा प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक, प्रिवेंट बैक्टीरियल अटैक. ओके. फिर उसके बाद यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड में अल्कलाइन सिक्रीशन, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेनिस, अल्कलाइन सिक्रीशन. यहाँ पे सिक्रेट विस्कस म्यूकस, प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग क्वाइटस. सीमेन, स्पर्म प्लस, सीमेन यहाँ पे स्पर्म प्लस समाइनल प्लाज्मा, फ्रक्टोज, कैल्शियम 2+, सर्टन एंजाइम्स,
सीमेन यहाँ पे स्पर्म प्लस समाइनल प्लाज्मा, स्पर्म प्लस समाइनल प्लाज्मा ये यहाँ पे, और इसमें क्या क्या है, फ्रक्टोज है, कैल्शियम 2+ एंड सर्टेन एंजाइम्स है, ठीक है। 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन, और सीमन 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन। pH 7.5 स्लाइटली अल्कलाइन, pH 7.5 है स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। 200 to 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन निकलता है, हाँ ठीक है। 2.5 to 5 ml, 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन निकल रहा है। 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन, 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन यहाँ से रिड्यूस होता है, ठीक है। pH 7.4 स्लाइटली अल्कलाइन। 200 to 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन। 60% नॉर्मल सेपेंट साइज का होना चाहिए, उसमें भी 40% ये विगरस मोटिलिटी का होना चाहिए। It includes the secretion of seminiferous tubules. It includes the secretion of seminiferous tubule. Epididymis was difference. Seminal vesicle, prostate and Copper's gland. Okay. Female reproductive tract. It is located in pelvic region. It is located in pelvic region. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये ओवरी है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे ओवरी है, ये ओवम रिलीज करता है और दूसरा मेन सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओके, ओवरी ये पेयर्ड है, ठीक है। लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन ऑन द आइदर साइड ऑफ यूट्रस, लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ यूट्रस, 2 to 4 centimeter, ठीक है। It is supported by ligament. It is supported by ligament. ये यहाँ पे यूट्रस हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट है, ठीक है। और फिर दूसरा यहाँ पे पैल्विक वॉल से है सस्पेंसरी लिगामेंट, पैल्विक वॉल से कनेक्टेड सस्पेंसरी लिगामेंट, और यहाँ पे हो गया ब्रूड लिगामेंट, यूट्रस और ओवरी से कनेक्टेड यहाँ पे ब्रूड लिगामेंट। ओके, ब्रूड लिगामेंट मीजो ओवरियन, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे ओवरी, ठीक है। ओवेरियन स्ट्रोमा ये दो है, एक हो गया आउटर मेडुला और इनर मेडुला, ठीक है। मेडुला और यहाँ पे ये कॉर्टेक्स मेडुला, और यहाँ पे हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू और यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे है इनर मेडुला। ओके, यहाँ पे है कॉर्टेक्स, ये पेरिफेरल वाला पार्ट, ठीक है। या मीजो ओवेरियन यहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स है, और ये फॉलिकल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हो गया, यहाँ पे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे फॉलिकल्स है। कॉर्टेक्स यहाँ पे पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। और यहाँ पे ये कॉर्पस एल्वाइकन, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डक्ट्स ग्लैंड इंक्लूड्स मेमोरी ग्लैंड, स्ट्रक्चरली फंक्शनली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डक्ट्स। दूसरा हो गया यहाँ पे ग्लैंड इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड, हाँ। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसमें डक्ट आ गया, फिर दूसरा ग्लैंड इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एसोसिएटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, structurally and functionally associated with female reproductive tract, structurally and functionally associated with female reproductive system, structurally and functionally associated with female reproductive system.
Gland includes glands including mammary gland, glands including mammary gland, glands including mammary gland, structurally and functionally associated with female reproductive system. ओव्यूलेशन ठीक है, यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर. ओके. accessory duct, fallopian duct, oviduct, paired, tend to accessory duct, fallopian tube, accessory duct, fallopian tube, oviduct, paired, accessory duct अब देखना है, fallopian tube, oviduct, paired, 10 to 12 centimeter long, it extend from periphery to ovary to uterus. accessory duct, fallopian duct, oviduct, accessory duct, fallopian duct, oviduct, ये paired है. हाँ बिल्कुल. accessory duct ये fallopian tube है, oviduct जिसे कहते हैं, ठीक है, paired है ये. 10 to 12 centimeter long, it extend from periphery to the ovary to periphery of ovary to uterus, it extend from periphery of ovary to uterus. बिल्कुल. ciliated columnar epithelium present है, मस्कुलर में स्मूथ मसल्स हो गया, ठीक है, एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ओके. और क्या पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में? एक्सटर्नल जेनिटलिया भी पढ़ने वाले हैं. ओके. ओविडक्ट का 3 पार्ट है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस. इन्फंडिबुलम फनल शेप स्ट्रक्चर क्लोज टू ओवरी. इन्फंडिबुलम फनल शेप स्ट्रक्चर close to ovary. It has finger-like projection called fimbria, which helps in collection of ovum. Okay. फिर उसके बाद ये हो गया इन्फंडिबुलम, ठीक है. फिर यहाँ पे एम्पुला ब्रॉडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट, 2 to 3rd पार्ट तो इसी का है एम्पुला, ठीक है. फिर उसके बाद इस्थमस, नैरो पार्ट, इट हैज़ अ नैरो ल्यूमन एंड इट लिंक्स ओविडक्ट टू यूट्रस, ठीक है. इन्फंडिबुलम हो गया, इसमें यहाँ पे फिम्ब्रिया प्रेजेंट है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस. ओके. यूट्रस और वोम्ब और हिस्ट्रा और मेट्रा भी से कहते हैं, ठीक है. इन्वर्टेड पियर शेप, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, वस्कुलर, रिमूवल ऑफ यूट्रस को कहते हैं हिस्ट्रेक्टोमी. ओके. It is also supported by ligaments. Gestation, embryonic development. It is also supported by ligament. Gestation. It is also supported by ligament. It is also supported by ligament. Gestation, embryonic development. It is also supported by ligament. Gestation, embryonic development. It is also supported by ligament. It is also supported by ligament. Gestation, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहीं पे होता है बिल्कुल.
ग्लैंडुलर, मस्कुलर, वस्कुलर है ये। रिमूवल ऑफ यूट्रस कहते हैं हिस्टेक्टोमी। ओके, यूट्रस। फंडस यूट्राइन बॉडी सर्विक्स, फंडस यूट्राइन बॉडी सर्विक्स, फंडस यूट्राइन बॉडी सर्विक्स, फंडस अपर डोम सेप, फंडस अपर डोम सेप स्ट्रक्चर दैट लिंक्स विथ ओविडक्ट, फंडस अपर डोम सेप स्ट्रक्चर दैट लिंक्स विथ ओविडक्ट। ठीक है। इम्प्लांटेशन साइट फंडस हो गया। यूट्राइन बॉडी, मेन बॉडी पार्ट, इट लिंक्स यूट्राइन कैविटी, इट लाइन्स यूट्राइन कैविटी। सर्विक्स, inferior narrow part, it has a cervical canal, it secretes cervical mucus, cervix हो गया, हाँ cervical mucus, cervical canal है। inferior narrow part है। ओके। wall of uterus है। perimetrium, myometrium, endometrium। perimetrium outer thin serous membrane, perimetrium या outer है thin serous membrane। perimetrium outer thin serous membrane, perimetrium outer thin serous membrane। wall of uterus, perimetrium, myometrium, endometrium। perimetrium outer जो की है, perimetrium जो outer है thin serous membrane। ठीक है। फिर myometrium middle है, thick layer of smooth muscles, vigorous contraction, it in this leads to expulsion of baby during parturition। ठीक है। फिर सबसे अंदर है endometrium, ये inner है, ये सबसे अंदर है। ठीक है। ये सबसे अंदर है। glandular and highly vascular cyclic changes occur in this during menstrual cycle, i.e. it set off during menses, endometrium inner है। ठीक है। ये हो गया यहाँ पे glandular and highly vascular cyclic changes occur in this during menstrual cycle, cyclic changes occur हाँ in this during menstrual cycle, it set off during menses। endometrium। ठीक है। myometrium हो गया, perimetrium हो गया। vagina 8.5 centimeter long fibromuscular tube, 8.5 centimeter long fibromuscular tube, ये वजाइना है। हाँ 8.5 centimeter long fibromuscular tube, it acts as a copulatory organ, no glands are present here। non-keratinized stratified squamous epithelium, non-keratinized stratified squamous epithelium। okay, no glands, it's act as copulatory canal, gland canal है तो हाँ ठीक है, it acts as copulatory canal। non-keratinized stratified squamous epithelium। ठीक है। it has a transverse fold, जिसे रोगे कहते हैं। ठीक है। it has a transverse fold, जिसे रोगे कहते हैं। वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, बर्थ कैनाल को कहते हैं। वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, इसे कहते हैं बर्थ कैनाल। वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल,
वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, इसे कहते हैं बर्थ कैनाल। हाँ, इन दोनों को मिला के तो कहते हैं बर्थ कैनाल, वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल दोनों मिला के कलेक्टिवली कहते हैं बर्थ कैनाल। ओके, वजाइना लीड्स टू एक्सटीरियर वाया एन ओपनिंग, vagina leads to exterior via an opening vaginal orifice. It is partially covered by a membrane called hymen, not an indicator of virginity. बिल्कुल। Female external genitalia collectively called vulva or pudendum collectively called vulva or pudendum. Female external genitalia collectively called vulva or pudendum, collectively called vulva or pudendum. यहाँ पे ये है प्यूबिक हेयर, यहाँ पे ये है प्यूबिक हेयर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। वेस्टिब्यूल, ये हो गया यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस। ये हो गया यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस, यहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन, कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिविया मेजूरा होमोलोगस टू स्क्रोटम, Labia majora, fleshy fold of tissue that extend down from mons pubis and surround vaginal orifice. Labia majora, homologous to scrotum. A fleshy fold of tissue that extend down from mons pubis and surround vaginal orifice. Fleshy fold of tissue that extend down from mons pubis and surround vaginal orifice Labia majora, homologous to scrotum. Labia majora, homologous to scrotum. Fleshy fold of tissue. A fleshy fold of tissue that extend down from mons pubis and surround vaginal orifice Labia majora, homologous to scrotum. Labia majora, homologous to scrotum. Fleshy fold of tissue that extend down from mons pubis and surround vaginal orifice Labia majora, homologous to scrotum, ठीक है। Fleshy fold of tissue that extend down from mons pubis and surround vaginal orifice. A fleshy fold of tissue that extend down from mons pubis and surround vaginal orifice Fleshy fold of tissue. Fleshy fold of tissue that extend down. Fleshy fold of tissue that extend down from mons pubis and surround vaginal orifice. Labia minora, homologous to penile urethra.
Livia minora, homologous to penile urethra. A paired fold of tissue that lies under the labia majora. Livia minora, homologous to penile urethra. Livia minora. Livia minora, homologous to penile urethra. Livia minora, homologous to penile urethra. Paired fold of tissue that lie under the labia majora. Paired fold of tissue that lie under the labia majora. हाँ, paired fold of tissue that lie under the labia majora. अब देखते हैं क्लिटोरिस होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस. क्लिटोरिस होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस. क्लिटोरिस homologous to glans penis. Tiny finger like structure present at the upper junction of labia minora. Erectile tissue corpora cavernosa का बनाया. अच्छा, clitoris tiny finger like structure present at upper junction of labia minora. ओके, erectile tissue का ये बना है corpora cavernosa. ठीक है, यहाँ पे हो गया pubic hair mons pubis में. ठीक है, यहाँ पे क्लिटोरिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा. यहाँ पे यूरेथ्रल ऑरिफिस है. ठीक है, यहाँ पे स्किन्स ग्लैंड हो गया. यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड. यहाँ पे वजाइनल ऑरिफिस है. यहाँ पे फोर्चिट स्किन कनेक्टिंग फोल्ड ऑफ लेविया माइनोरा ऑन पोस्टीरियर एंड. यहाँ पे पेरिनम. ओके, फिर यहाँ पे एनस हो गया. ओके, एसेसरी डक्ट बार्थोलिन ग्लैंड. एसेसरी ग्लैंड बार्थोलिन ग्लैंड स्किन्स ग्लैंड और लेसर्स वेस्टिबुलर ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड. बार्थोलिन ग्लैंड स्किन्स ग्लैंड. बार्थोलिन ग्लैंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड. बार्थोलिन ग्लैंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड. पेयर्ड homologous to Copper's gland और bulbourethral gland. homologous to Copper's gland और bulbourethral gland. homologous to Copper's gland और bulbourethral gland. और bulbourethral gland कौन सा? बार्थोलिन ग्लैंड. ठीक है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड पेयर्ड है ये. ठीक है, सिक्रेट्स विस्कस म्यूकस विच प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग क्वाइटस अराउंड वजाइनल ऑरिफिस. ओके, दूसरा स्किन्स ग्लैंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड. पेयर्ड है ये. सिक्रेट म्यूकस अराउंड यूरेथ्रल ऑरिफिस. homologous to prostate. Okay, mammary gland. Modified pseudorypherous gland. Mammary gland. Modified pseudorypherous gland. Sweat gland.
mammary gland, mammary gland, mammary gland, pseudo modified pseudodiferous gland, modified pseudodiferous gland, modified pseudodiferous gland, mammary gland, modified pseudodiferous gland, sweat gland, ठीक है. Apocrine gland, it is developed on the onset of puberty under the influence of estrogen and progesterone, ठीक है. एस्ट्रोजन का काम क्या है? फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ डक्ट्स. एस्ट्रोजन का काम है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डक्ट्स, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ डक्ट्स, ये हो गया एस्ट्रोजन का काम, ठीक है. प्रोजेस्टेरॉन, डिफरेंशिएशन ऑफ एल्वियोलाई, एस्ट्रोजन फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ डक्ट्स, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ डक्ट्स, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ डक्ट्स, ये हो गया एस्ट्रोजन, ठीक है. फिर यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, डिफरेंशिएशन ऑफ एल्वियोलाई, प्रोजेस्टेरॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एल्वियोलाई, it is developed on the onset of puberty under the influence of estrogen, progesterone. एस्ट्रोजन हो गया यहाँ पे फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ डक्ट, ठीक है. फिर यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, डिफरेंशिएशन ऑफ एल्वियोलाई, एस्ट्रोजन फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ डक्ट, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ डक्ट, ठीक है. ये क्या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, डिफरेंशिएशन ऑफ एल्वियोलाई, ओके. सिचुएटेड ऑन पेक्टोरालिस मेजर मसल्स इन फ्रंट ऑफ थॉरैक्स. It is made up of three types of tissue. It is made up of three types of tissue: glandular tissue, adipose tissue. It is made up of three types of tissue: glandular tissue, adipose tissue determining the size of breast, adipose tissue determine the size of breast, fibrous connective tissue support alveoli and duct, situated on pectoralis major muscles in front of thorax, okay. It is made up of three types of tissue: glandular tissue हो गया, adipose tissue determine the size of breast, fibrous connective tissue support alveoli and duct, fibrous connective tissue support alveoli and duct, fibrous connective tissue support alveoli and duct, okay. यहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यू, मेमोरी लोब, ग्लैंडुलर टिश्यू, मेमोरी लोब 15 to 20 in each breast, मेमोरी लोब 15 to 20 in each breast, ठीक है. मेमोरी लोब 15 to 20 in each breast contain memory alveoli secrete milk store in its lumen, okay. फिर memory tubules, फिर यहाँ पे memory duct, फिर यहाँ पे memory ampulla, lactiferous sinus, सबसे पहले यहाँ पे हो गया लोब, memory lobes कंटेन मेमोरी, ये था मेमोरी लोब से, ठीक है. कंटेन मेमोरी एल्वियोलाई, यहाँ पे सीक्रेट मिल्क स्टोर इन इट्स ल्यूमेन, ओके. फिर यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर यहाँ पे मेमोरी डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आया, फिर मेमोरी डक्ट, फिर यहाँ पे मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस साइनस, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस साइनस, इट स्टोर मिल्क टेम्पररी. फिर उसके बाद यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट निपल, लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ पे निपल टू आउटसाइड, ये हो गया, ठीक है.
यहाँ पे ये है मसल्स बिटवीन रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, कट एंड्स ऑफ रिब्स, मसल्स बिटवीन रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। मसल्स बिटवीन रिब्स, ठीक है। ये हो गया कट एंड ऑफ रिब्स। फिर यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, ठीक है। यहाँ पे है पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। यहाँ पे हो गया मेमरी लोब 15 to 20, मेमरी लोब यहाँ पे 15 to 20। इसके अंदर यहाँ पे मेमरी एल्वियोलाई है, मेमरी एल्वियोलाई प्रेजेंट है, ओके। मेमरी लोब 15 to 20, मेमरी लोब 15 to 20, ठीक है। फिर यहाँ पे मेमरी एल्वियोलाई है, ओके। फिर यहाँ पे इसके अंदर मेमरी लोब्यूल, ठीक है, मेमरी डक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे मेमरी ट्यूब्यूल, हाँ ठीक है, ये सब इसके अंदर है, वो सब छोड़ो, एनसीईआरटी में नहीं है। मेमरी डक्ट ही हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेमरी एम्प्यूला, लैक्टिफेरस साइनस, ओके। फिर यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट एंड देन फिर यहाँ पे निपल बाहर। यहाँ पे एरियोला, हाइपर पिगमेंटेड एरिया, ठीक है। यहाँ पे कंटेन एरियोलर ग्लैंड, ओके। Composition of milk 500 ml to 900 ml per day, 500 ml to 900 ml per day, colostrum, initial yellowish milk, colostrum यहाँ पे हो गया इनिशियल येलोइस मिल्क, IgA एंटीबॉडी प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट, colostrum यहाँ पे हो गया इनिशियल येलोइस मिल्क, IgA एंटीबॉडीज प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट, यहाँ पे हो गया कोल्स्ट्रम इनिशियल येलोइस मिल्क, IgA एंटीबॉडी प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट। कैसीन मिल्क प्रोटीन, लैक्टोज मिल्क शुगर, नो फैट, आयरन यहाँ पे लेस इन नंबर, ठीक है। विटामिन मिनरल्स रहता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम फॉस्फोरस, ठीक है। इनहिबिटरी पेप्टाइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। आप देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी। Spermatogenesis begins at puberty. Spermatogenesis begins at puberty. Spermatogenesis begins at puberty. 65 to 75 days. In the formation of spermatozoa, sperms form spermatogonia. Spermatogenesis begins at puberty. Spermatogenesis begins at puberty, 65 to 75 days. It is the formation of spermatozoa, sperm from spermatogonia, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें दो पार्ट, एक हो गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटालियोसिस। और इसे मेनली कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसमें ये दो तरह का आता है, एक हो गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मेटालियोसिस और
मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये दो पार्ट में हो गया, ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। है स्पर्मेटोजेनेसिस, 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 स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोलियोसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस दो तरह का है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया 2n से यहाँ पे बन गया स्पर्मेटिड एन, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस में स्पर्मेटिड एन से ये बनेगा स्पर्म, ओके। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया हो गया 2n, इसमें माइटोसिस हुआ, ये दो बना, एक टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया acts as stem cell and form more spermatogonia, ओके। फिर दूसरा ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पे ग्रोथ हुआ, फिर डिफ्रेंसिएशन हुआ, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना 2n, यहाँ पे मियोसिस बनवा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n, यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ, ये बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो को बना स्पर्मेटोगोनिया में। यहाँ पे सोज, यहाँ पे ग्रोथ हुआ, डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे इसे कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना 2n का, ठीक है। फिर यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ, ये बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n और n, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ, यहाँ पे बना स्पर्मेटिड n। फिर सेकेंड ये दूसरे वाले से भी मियोसिस 2 हुआ, यहाँ पे स्पर्मेटिड बना n, ओके। यहाँ पे अगर 25 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट है तो इससे कितना बनेगा, 25 1 डिग्री है तो 1 2 3 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 50 सेकेंडरी है तो फिर इससे 50 है ना सेकेंडरी, तो 1 से 2 बनता है सेकेंडरी, हाँ 1 से 2 बनता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 100, ओके। स्पर्मेटिड एंड नॉन मोटाइल एंड हैवी। अब देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। Spermatids are non-motile and heavy. They lose excess cytoplasm and develop locomotory structure. Spermatid से डिफ्रेंसिएशन के बाद ये बना स्पर्म और स्पर्मेटो जो है, ओके। यहाँ पे न्यूक्लियस है n, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रियोल है, ये हो गया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर यहाँ पे हो गया गोल्जी बॉडी, ओके। फिर इसे डेवलप करके ये बना यहाँ पे टेल है, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे हो गया गोल्जी बॉडी, और आगे चल के ये डेवलप हुआ, फिर यहाँ पे ये बन गया एक्रोसोम न्यूक्लियस, ये हो गया यहाँ पे एक्रोसोम, ये हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पे हो गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। हाँ एक्रोसोम न्यूक्लियस, एक्रोसोम न्यूक्लियस, ये हो गया यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यहाँ पे हो गया डिस्टल सेंट्रियोल, यहाँ पे ये एक्सल फिलामेंट 9+2, एक्सल फिलामेंट 9+2, और यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया। एक्रोसोम ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, फिर यहाँ पे हो गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और फिर यहाँ पे ये है डिस्टल सेंट्रियोल, यहाँ पे हो गया एक्सल फिलामेंट 9+2, ठीक है। फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये आगे चल के क्या बन गया स्पर्म, यहाँ पे हो गया एक्रोसोम, यहाँ पे हो गया एक्रोसोम, हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल,
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहाँ पे हो गया डिस्टल सेंट्रियोल, यहाँ से एक्सल फिलामेंट 9+2, फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, हेड में यहाँ पे क्या है, एक्रोसोम। एक्रोसोम यहाँ पे हो गया डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी कंटेन्स एक्रोसोम derived from Golgi body। एक्रोसोम ये क्या, derived from Golgi body contains hydrolytic enzyme sperm lysine। Acrosome derived from Golgi body contains hydrolytic enzymes sperm lysine contain hydrolytic enzyme sperm lysine। एक्रोसोम derived from Golgi body ठीक है, contain hydrolytic enzyme sperm lysine hyaluronidase degrade hyaluronic acid between corona radiata cells। hyaluronidase contains, सबसे पहले तो ये एक्रोसोम डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी ठीक है, कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम Acrosome derived from Golgi body contains hydrolytic enzyme contain hydrolytic enzyme sperm lysine ठीक है, contain hydrolytic enzyme sperm lysine। derived from Golgi body contain hydrolytic enzymes sperm lysine हाँ, contain hydrolytic enzyme sperm lysine hyaluronidase degrade hyaluronic acid between corona radiata। हाँ, hyaluronidase क्योंकि प्रेजेंट है, degrades hyaluronic acid between corona radiata cells। CPE corona penetrating enzyme degrade corona radiata ठीक है, contain hydrolytic enzyme ठीक है, sperm lysine ठीक है, फिर यहाँ पे hyaluronidase degrades hyaluronic acid degrades hyaluronic acid between corona radiata cells ठीक है। CPE corona penetrating enzyme degrade corona radiata sperm lysine और acrosine degrade zona pellucida hyaluronidase degrade hyaluronic acid between corona radiata cells ठीक है, फिर CPE corona penetrating enzyme degrade corona radiata zona lysine और acrosine degrade zona pellucida ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोमल मटेरियल ठीक है, फिर नेक ये शॉर्टेस्ट पोर्शन है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प्स इन फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। proximal centriole helps in first cleavage division ठीक है, फिर यहाँ पे distal centriole इससे यहाँ पे बनता है एक्सल फिलामेंट 9+2 के फॉर्म में ठीक है, फिर ये मिडिल पीस है, यहाँ पे एक्सल फिलामेंट हो गया 9+2 प्रेजेंट है मिडिल पीस में बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल निबेन कर्ण अरेंजमेंट एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया टेल ये मोटिलिटी का काम करता है ठीक है, फिर यहाँ पे भी इस
एक्सेल फिलामेंट 9+2 प्रेजेंट है, ठीक है। सेंट्रियोल बाय फादर आता है और माइटोकॉन्ड्रिया बाय मदर आता है। अब देखते हैं स्पर्मिएशन। sperm head are embedded in cytoplasm of Sertoli cells and they are finally released from seminiferous tubule. This process is known as spermiation. Sperm head are embedded in cytoplasm of Sertoli cell. Sperm head are embedded in cytoplasm of Sertoli cells and they are finally released from seminiferous tubule. This process is known as spermiation. Hormonal regulation of spermatogenesis. Hormonal regulation of spermatogenesis. Hormonal regulation of spermatogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले यहाँ पे हाइपोथैलेमस ये जीएनआरएच को स्टिमुलेट किया, फिर जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच एफएसएच सीक्रेट किया, एलएच लेडिक सेल के पास लेडिक सेल को सीक्रेट किया टू लेडिक सेल को स्टिमुलेट किया टू सीक्रेट एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ये एफएसएच को स्टिमुलेट किया ठीक है, एफएसएच को। फिर यहाँ पे एफएसएच ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किया, फिर यहाँ पे सर्टोली सेल सिक्रीट एबीपी फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन कौन सर्टोली सेल, ठीक है। लीडिंग सेल सिर्फ सिक्रीट करता है एंड्रोजन। फिर यहाँ पे सर्टोली सेल ये सिक्रीट एबीपी फॉर कंसनट्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस फैगोसाइटोज एक्सेस साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटा, ठीक है। फिर ये इनिबिन भी सिक्रीट करता है और ये नेगेटिव फीडबैक सेंड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ओके। और टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक सेंड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी एज वेल एज हाइपोथैलेमस को, ओके। अब देखते हैं oogenesis. Oogenesis द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम ओगोनिया। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम ओगोनिया, ठीक है। हाँ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम ओगोनिया। oogenesis begins during embryonic development fetal ovary begins during embryonic development fetal ovary begins during embryonic development fetal ovary, ठीक है। a couple of million oogonia are present fetal ovary, ठीक है। no more oogonia are formed and add after birth. no more oogonia are formed and add after birth. a couple of millions oogonia are present जिसे कहते हैं fetal ovary, ठीक है। उसके बाद at birth 2 lakh to 20,000 primary oocytes are present in each ovary. फिर यहाँ पे follicular atresia होता है at puberty 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary, ठीक है। during fetal stage यहाँ पे ये basement ये हो गया। प्राइमरी oocytes अभी 2n है, ठीक है। प्राइमरी oocytes है ये 2n है। यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स ये जो है ये यहाँ पे क्यूबॉइडल शेप का है फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स क्यूबॉइडल शेप ये यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया प्राइमरी oocytes 2n, प्राइमरी oocytes यहाँ पे 2n है, ठीक है। यहाँ पे चारों बगल फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है क्यूबॉइडल शेप। स्ट्रोमल सेल्स फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स ये स्ट्रोमल सेल्स है। यहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स है फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स क्यूबॉइडल शेप। प्राइमरी oocytes ये 2n, ठीक है। चारों वाले यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स है क्यूबॉइडल शेप का।
ओके यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके फिर यहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स। ओके फिर यहाँ चारों पर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल, ये है प्राइमरी फॉलिकल। ओके प्राइमरी oocytes temporarily arrested in diploid stage of prophase 1, diploid stage of prophase 1 of meiosis 1, ये बिफोर बर्थ की बात है। डिप्लोइड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1 में अरेस्ट है। ओके प्राइमरी oocytes, अब यहाँ पे देखते हैं एट प्यूबर्टी, ये बीच में प्राइमरी oocyte है 2n, ठीक है। चारों बगल यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स बन रहा है। ग्रेन्युलोसा सेल्स पहले एक लेयर ही था बस, अब बहुत सारा हो चुका है ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स और ये हो गया कोलेजन फाइबर्स। ओके ये है लेट प्राइमरी फॉलिकल। फिर उसके बाद अब सेकेंडरी फॉलिकल, यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स और बन गया। प्राइमरी oocytes का प्यूबर्टी पे वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, वो बन गया था ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा बना, अब इसका प्राइमरी oocytes का ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे थीका फॉलिकुलाई बन चुका है, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और यहाँ पे बीच में प्राइमरी oocyte से 2n अभी भी है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल से ये सेकेंडरी फॉलिकल बना, थोड़ा सा ग्रोथ हो रहा है इसमें। ओके अब आता है टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन। टर्सरी फॉलिकल सिक्रीट करता है क्या, एस्ट्रोजन। When level of FSH increases, primary oocyte in tertiary follicle stays complete its first meiotic division, और फिर ये यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन गया n, सेकेंडरी oocyte बन गया n, रिटेन बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये बना फर्स्ट पोलर बॉडी n, ठीक है। डीजेनरेट और मेंटेन हैप्लॉइड फेज, डीजेनरेट ये डीजेनरेट हो जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ये डीजेनरेट हो जाता है, और फिर ये क्या करता है, मेंटेन हैप्लॉइड फेज। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte एन है, ठीक है। रिटेन बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी ये एन है, ठीक है। डीजेनरेट हो जाता है, ये मेंटेन हैप्लॉइड फेज। एंट्रम ये यहाँ पे हो गया फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यहाँ पे ये है एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स, एंट्रम ये हो गया यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये हो गया यहाँ पे एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ओके यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स है और यहाँ पे बीच में सेकेंडरी oocyte है एंड सेकेंडरी oocyte है एंड यहाँ पे ये हो गया थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और ये बाहर में हो गया थीका एक्सटर्ना, थीका फॉलिकुलाई, ठीक है। सिक्रेट्स एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, ठीक है। ये बीच में हो गया, ये सेकेंडरी oocyte बन चुका है एंड हैप्लॉइड हो चुका है, ठीक है। ये हो गया ग्रेन्युलोसा सेल्स, ओके। टर्सरी फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, बिल्कुल। ये यहाँ पे बन चुका है, ये सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है एंड, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल यहाँ पे एंट्रम डेवलप हो चुका है, किसमें, टर्सरी फॉलिकल में ये डेवलप हुआ एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ओके ये ग्रेनुलोसा सेल एंट्रम यहाँ पे डेवलप हो गया फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। एक्सटर्ना, ठीक है, इंटरना बन चुका है, ठीक है। प्राइमरी oocytes इन टर्सरी फॉलिकल, कंप्लीट, हाँ क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल तो उसे कह रहे थे जहाँ पे प्राइमरी oocyte था, ठीक है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल में उसका साइज़ अब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। टर्सरी तक पहुँचा, टर्सरी में डिवीज़न हो गया, सेकेंडरी oocyte बन गया और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। ओके अब फिर उसके बाद आता है ग्रेफिन फॉलिकल, यहाँ पे थीका इंटरना है, थीका एक्सटर्ना, यहाँ पे क्यूमुलस ओफोरस बन चुका है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे सेकेंडरी oocyte एंड है, पेरीविटलाइन स्पेस बन चुका है, पेरीविटलाइन स्पेस। फिर यहाँ पे हो गया जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी oocyte, ये ए सेलुलर है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, ठीक है।
जोना पेल्यूसिडा, ये जो लेयर है बीच में हो गया पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है। फिर ये बना जोना पेल्यूसिडा फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी oocyte, ये ए सेलुलर है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना, ये हो गया जोना पेल्यूसिडा। फिर यहाँ पे कोरोना रेडिएटा सेल्स है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा सेल्स है। ये यहाँ पे कैविटी हो गया एंट्रम, लीकर फॉलिक्यूलाई, ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte एंड, ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte, ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte एंड, ठीक है, यहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर, वहाँ ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte एंड, ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte एंड, ठीक है, अरेस्टेड इन मेटाफेज टू, यहाँ पे इसे कहते हैं ओव्यूलेशन। हाँ बिल्कुल, ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte, इसे तो कहते हैं ओव्यूलेशन। और ये रैप्चर, अब जो ये बचा रेमनेंट ऑफ फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल अरेस्टेड इन मेटाफेज टू, ये यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल्स है, पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है, हो गया जोना पेल्यूसिडा और चारों बगल कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी oocyte इंटर इंटू मियोसिस टू, सेकेंडरी oocyte इंटर्स इंटू मियोसिस टू एंड गेट, secondary oocyte enters into meiosis 2. Secondary oocytes enter into meiosis 2 and get temporarily arrested. Metaphase 2 of meiosis 2. Secondary oocyte enter into meiosis 2 and get temporarily arrested in metaphase 2 of meiosis 2, ठीक है। formation of MPF metaphase promoting factor. Formation of MPF metaphase promoting factor after entry of sperm MPF degrade. यहाँ पे secondary oocyte enter in meiosis 2, ठीक है, secondary oocyte enters in meiosis 2 and get temporarily arrested in metaphase 2 of meiosis 2, ठीक है, टेम्परली अरेस्टेड हो गया किसमें, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, फॉर्मेशन ऑफ MPF मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। सेकेंडरी oocyte enters into meiosis 2. Secondary oocyte enters into meiosis 2 and temporarily arrested in metaphase 2 of meiosis 2, ठीक है, formation of MPF metaphase promoting factor, फिर यहाँ पे after entry of sperm MPF degrade, metaphase promoting factor degrade, ठीक है, और फिर APC formation start, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, फिर यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, यहाँ पे ओवम बना एन, ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी एन, यहाँ पे क्या डिग्रेड हो जाता है ये आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म
MPF मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर डिग्रेड APC फॉर्मेशन स्टार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू ओवम एंड रिटेन बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ से निकला और ये डिग्रेड हो गया, ठीक है। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म तब जाके मियोसिस टू कंप्लीट होता है, अच्छा तब सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। ओके। फिर ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, यहाँ पे मेल प्रोन्यूक्लियस, ये ओवम हो गया एन, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सेकेंड पोलर बॉडी ये हो गया ओवम एन है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और ये इधर है मेल प्रोन्यूक्लियस और यहाँ पे ये सेकेंड पोलर बॉडी। ओके। हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज हार्मोनल फीडबैक पहले देख लेते हैं। मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड है अगर, तो फिर GnRH, FSH, LH का लेवल कम रहेगा। अगर मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है तो GnRH, FSH, LH की लेवल कम रहेगी, ठीक है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन की लेवल ज़्यादा है इन ब्लड देन GnRH, FSH, LH की लेवल ज़्यादा होगी और LH की तो लेवल बहुत ज़्यादा होगी इनफैक्ट, ओके। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है इन ब्लड देन GnRH, LH, FSH की लेवल कम रहेगी जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज़्यादा है। तो मॉडरेट लेवल है तो कम ही है, ठीक है। जब हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और LH की तो और भी ज़्यादा बढ़ गई। GnRH, FSH, LH की बढ़ी और LH की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन ब्लड, तो यहाँ पे GnRH, FSH, LH की लेवल कम है, ओके। हम देखते हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्रीमेट्स मैमल्स, एग्जाम्पल मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। 28 डेज साइकिल होता है, एवरेज है, ठीक है। अब सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। menstrual cycle reproductive cycle in female primate mammals, एग्जाम्पल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, ठीक है। 28 डेज साइकिल है, एवरेज 28 डेज साइकिल एवरेज। मेनार्क कहते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आफ्टर प्यूबर्टी, मेनार्क। मेनोपॉज, सीजेशन of menstrual cycle in female 50 years. Okay, it occurs in four step. Her menstrual phase, it occurs in four stages. It occurs in four step. It occurs in four step. मेंस्ट्रुअल फेज, इट अकर्स इन 4 स्टेप। पहला हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज। It occurs in 4 step. पहला मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। फिर सेकंड फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, फोर्थ ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज, ओके। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज, पहला मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज 1st to 5th डे तक होता है, ठीक है। जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो जाती तो फिर फीमेल बॉडी सिक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन
तो फिर इससे क्या होता है यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो फिर ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम एंड इट्स ब्लड वेसल्स कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्रॉम वजाइना 50 to 150 ml, बॉडी से बाहर जाता ब्लड, ठीक है, 50 to 150 ml. Endometrium secretes profibrinolysin. Endometrium secretes fibrinolysin. Keep menses in liquid state. अच्छा हाँ, endometrium secretes fibrinolysin. Keep menses in liquid state. fibrinolysin secrete करता, हाँ. फिर breakdown of endometrium takes place as there is no fertilization. Absence of menstruation may indicate pregnancy. Absence of menstruation may indicate pregnancy. Breakdown of endometrium takes place as there is no fertilization. Breakdown of endometrium takes place as there is no fertilization. Absence of menstruation may lead pregnancy. It also be due to poor health, stress, etc. Okay. Second, follicular or proliferative phase. Follicular or proliferative phase ये 6 to 13 days ये चलता है, ठीक है. irregular or delay or variable. Okay. In this, primary follicle is developed into mature Griffin follicles. Follicular or proliferative phase. Follicular or proliferative phase 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 6 to 13 days ये चलता है, ठीक है. ये irregular है, ये डिले हो सकता है, ये फेज़ वेरिएबल फेज़ होता है, ठीक है. इन दिस प्राइमरी फॉलिकल्स इज डेवलप इनटू मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स. In this, primary follicles is developed into mature graphene follicles. And then dominant follicles, जो डोमिनेंट फॉलिकल्स है वो सिक्रीट करता, इसमें से ग्रेफिन फॉलिकल्स जो है, ठीक है. तो ये जो डोमिनेंट फॉलिकल्स है ये सिक्रीट करता इनिबिन और फिर हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच ये आता एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर यहाँ से एलएच और एफएसएच निकलता, ठीक है. तो फिर ये डोमिनेंट फॉलिकल्स जो है, ठीक है, जो कि एक्चुअल के ग्रेफिन फॉलिकल्स बनाइए सिक्रेट करता इनिबिन और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता और एफएसएच को भी नेगेटिव फीडबैक देता, फॉलिकुलर डेवलपमेंट फिर रोक देता, ठीक है, क्योंकि एक डेवलप ऑलरेडी हो गया, ठीक है. तो फिर ग्रेफिन फॉलिकल्स ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रेट एस्ट्रोजन. ये जो ग्रेफिन फॉलिकल्स है फिर ये ग्रोइंग फॉलिकल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन, बिल्कुल टर्सरी फॉलिकल मेनली सिक्रेट एस्ट्रोजन. फिर उसके बाद ये ग्रोइंग फॉलिकल सिक्रेट एस्ट्रोजन. प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम हो रहा, हाँ एस्ट्रोजन आ चुका है, तो एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, रीबिल्डिंग हो रहा है, हाँ. डेट्स वाइज से कहते हैं सेकेंड वाले कहते हैं प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज़ हो गया, ठीक है, 6 to 13 डेज. अब उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज़ 14th डे मिडल ऑफ साइकिल ये काम होता है. ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रेट एस्ट्रोजन. ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रेट एस्ट्रोजन. ग्रोइंग फॉलिकल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन. ये पॉजिटिव फीडबैक देता एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को एलएच और एफएसएच के लिए. तो एस्ट्रोजन क्यों आ रहा, तो ये एलएच सर्ग जाता और फिर एफएसएच का भी लेवल हाई है तो एलएच सर्ग गया. रैप्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल्स आफ्टर 10 आवर्स के बाद एलएच सर्ग जाता, फिर यहाँ पे रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocytes, इसे कहते हैं ओव्यूलेशन. ओके, एस्ट्रोजन का लेवल हाई था तो ये पॉजिटिव फीडबैक सेंड किया, एस्ट्रोजन का लेवल हाई तो एलएच बढ़ गया, एफएसएच बढ़ गया, एलएच सर्ग आ गया 10 घंटे बाद.
ग्रेफर फॉलिकल्स के रैप्चर होने के बाद फिर यहाँ पर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं, ओके। फिर उसके बाद ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज चौथा आता है ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज। ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज 15 to 28th डे, 15th to 28th डेज, 15 to 28th डे, यहाँ पे 14 डेज कांस्टेंट है, ठीक है। ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज 15th ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज 15 to 28 डेज, 15 to 28 डेज। ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज 15 to 28th डे, 15 to 28th डे। फिफ्टीन टू ट्वेंटी एट्थ डे 15 to 28th डे 14 डेज यहाँ पे कांस्टेंट है, 14 डेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 15th to 28th डे, यही तो कांस्टेंट है जो कि रहता है, 14 डेज कांस्टेंट ये हमेशा रहता है। कौन सा? ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, ठीक है। यहाँ पे LH सर्ग गया तो फिर यहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल्स रैप्चर, सेकेंडरी oocytes रिलीज, ठीक है। और फिर रेमनेंट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH बिकम्स कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन, लार्ज अमाउंट में ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है बट प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। अंडर रेमनेंट ऑफ फॉलिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH बिकम्स कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करता है और एस्ट्रोजन थोड़ा कम, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई मतलब GnRH FSH LH का लेवल कम हो चुका है, ठीक है। सो LH स्टार्ट डिक्रीज, धीरे धीरे LH की क्वांटिटी कम हो रही है। कॉर्पस ल्यूटियम कैन नॉट बी मेंटेन, अब ये मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो LH तो मेंटेन करके रखा था कॉर्पस ल्यूटियम को। सो LH स्टार्ट डिक्रीज, कॉर्पस ल्यूटियम कैन नॉट बी मेंटेन्ड, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सिक्रीशन बाय कॉर्पस ल्यूटियम डिक्रीज। हाँ, जब ये मेंटेन नहीं रह रहा तो फिर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सिक्रीशन बाय कॉर्पस ल्यूटियम डिक्रीज, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट एंड फॉर्म कॉर्पस अल्बाइकन कैन नॉट सिक्रीट एनी हार्मोन। अच्छा, फिर यहाँ पे सब कुछ का लेवल कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो गया, तो अब उसको मेंटेन कौन रखेगा? इंडोमेट्रियम को। ये तो मेंटेन करके रखा था प्रोजेस्टेरॉन, तो फिर मेंटेन करने वाला नहीं है, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया। फीमेल बॉडी सिक्रेट की प्रोस्टाग्लैंडिन, लोकल हार्मोन, ये स्टार्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्शन, फिर से ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम हो गया, तो फिर मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा काम है मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम। हाँ, मतलब यही तो काम है इसका, प्रोजेस्टेरॉन का। अच्छा, पहले ये पढ़ना था, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम, इंक्रीज वस्कुलर सप्लाई इन इंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरॉन का काम है मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम, इंक्रीज वस्कुलर सप्लाई, मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरॉन का यही काम है, मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम, इंक्रीज्ड वस्कुलर सप्लाई इन इंडोमेट्रियम, स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम। हाँ, यही तो प्रोजेस्टेरॉन का यही तो काम है, मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम। हाँ बिल्कुल। इंक्रीज वस्कुलर सप्लाई इन इंडोमेट्रियम, इंक्रीज वस्कुलर सप्लाई इन इंडोमेट्रियम, स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम। यूटेराइन मिल्क, ग्लाइकोजन, हाँ इसमें रहता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम था? मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। इंक्रीज वस्कुलर सप्लाई इन एंडोमेट्रियम, ओके। स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम फॉर सिक्रीशन ऑफ यूटेराइन मिल्क ग्लाइकोजन, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट गया तो फिर अब हाई था तो इन सब का कम था, फिर धीरे LH कम हुआ तो फिर धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कम हो गया, तो फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया इंडोमेट्रियम में, ठीक है। If a female has menstrual cycle of 38 days, what will be the day of evolution? 14 माइनस कर दो,
क्योंकि ल्यूटियल फेज वो तो कांस्टेंट होता है, तो 38 माइनस 14 24 डेज पे ओव्यूलेशन हुआ था। बिल्कुल। केस 1 हो गया। हाँ, केस 1 ये था, ठीक है। अब केस 2, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर फर्टिलाइजेशन अकर ल्यूटियल फेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक रहता। देखते हैं। बाथरूम में है। पापा मैंने हाँ ये कहा था ना। कौन को पहचाना, हमको पता था ये बात। हाँ तो ये बताओ, छोटा छोटा काम तुम नहीं खाएगा। दो देना ये कथीला सेंटर एग्री डोंट एग्री बक दोनों को काम पर टीम चार्ज था पड़ना समझ 25 रुपया डेबिटेड एंड क्रेडिट टू धर्मेंद्र कुमार। 25 रुपया किसी को दिए थे क्या? चुप रहो, उतना मेरे। अच्छा ये तो कपड़े का है, फल खरीदे थे आज। मैसेज तुम पढ़ रहे तो आप देख रहे ना किस जगह तो हमने पढ़े हैं। 20 रुपया सुरेश। अरे जो जो फल सब लगा ना, सुन का नाम याद कर लो, काम आएगा। यहाँ चल रहा है आपका टाइमिंग। Case 2, in case of fertilization occurs case 2, in case of fertilization occur luteal phase first trimester. In case of fertilization occur luteal phase first trimester. In case of fertilization occur luteal phase first trimester. In case of fertilization occur तो वहाँ पे luteal phase जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक चलता है। LH मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, LH मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। LH मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, हाँ LH मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये सिक्रेट होते रहता है, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा है तो GnRH FSH LH कम है। यहाँ पे एम्ब्रियो सिक्रेट करता है HCG हार्मोन। मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो फिर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन की भी फॉर्मेशन होते रहती है। अच्छा, एम्ब्रियो ये HCG सिक्रेट करता है, HCG हार्मोन ये रिलीज करता है जो कि मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। एम्ब्रियो HCG हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन फॉर्मेशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होने लगता है। तो फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन चालू रहता है। फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, prostaglandin in sperm and oxytocin in female stimulate contraction in the uterus and oviduct of female, which help in upward movement of sperm, lifting sperm upward. Prostaglandin in semen and oxytocin in female stimulate contraction in uterus. Prostaglandin in semen and oxytocin in female prostaglandin in semen and oxytocin in female prostaglandin in semen and oxytocin in female stimulate contraction in uterus. Prostaglandin in semen and oxytocin in uterus oxytocin in female stimulate contraction in uterus and oviduct of female, which helps in upward movement of sperm, lifting sperm upward. Okay, फिर कैपेसिटेशन 7 आवर्स का ये होता है, मेकिंग स्पर्म कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, डाइल्यूशन ऑफ सबसे पहले क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर
dilution of decapacitation factor, removal of phospholipid glycoprotein protein from head of sperm. Okay, सबसे पहले dilution of decapacitation factor, second removal of phospholipid glycoprotein protein from head of sperm, फिर उसके बाद influx of calcium ion in sperm convert their undulated movement into wisp movement, hunter like. अच्छा, सबसे पहले हो गया डाइल्यूशन ऑफ डिकैपेसिटेशन फैक्टर, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ डिकैपेसिटेशन फैक्टर, सेकेंड रिमूवल ऑफ फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम द हेड ऑफ स्पर्म, थर्ड influx of calcium ion in sperms convert their undulated the influx of calcium ion in sperm convert their undulated movement into wisp like movement, hunter like. ओके, फिर अब सबसे पहले क्या होगा, हेल्यूरोनिडीज यहाँ पे नहीं, सबसे पहले यहाँ पे ये होता है जोनालाइसिन और एक्रोसिन. हाँ, जोनालाइसिन और एक्रोसिन यहाँ पे ये प्रेजेंट है, जोनालाइसिन और एक्रोसिन. ZP2 जोनालाइसिन और एक्रोसिन डिसॉल्व जोना पेल्यूसिडा. हाँ, डिसॉल्व जोना पेल्यूसिडा. ZP2 और ZP3 रिसेप्टर्स यहाँ पे रहता है, फर्टिलाइजिंग जिसे कहते हैं, ठीक है. ZP2 और ZP3 रिसेप्टर्स यहाँ पे रहता है. जोनालाइसिन fertilizing anti-fertilizing reaction, egg has fertilizing ग्लाइकोप्रोटीन का जो कि बना है, ठीक है. स्पर्म हैज़ एंटी फर्टिलाइजिंग जो कि एसिडिक अमाइनो एसिड का बना है. स्पर्म हैज़ एंटी फर्टिलाइजिंग हाँ, जो कि एसिडिक अमाइनो एसिड का बना हुआ है. तो यहाँ पे ये हो गया ZP2 ZP3, ये सबसे पहले आके रिसेप्टर पे ही काम करता है. बाइंड विथ प्रोटीन बाइंड्स विथ ZP3 रिसेप्टर, ये स्पर्म है, ठीक है. प्रोटीन बाइंड्स विथ ZP3 रिसेप्टर, ये रिसेप्टर यहाँ पे गया ZP3 रिसेप्टर. हाँ, तो यहाँ पे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. अच्छा, हाँ, ये तो गया ZP3 रिसेप्टर से ये बाइंड करता है. तो यहाँ पे रिएक्शन हो गया, ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हो गया. हाँ, जोनालाइसिन तो और एक्रोसिन जिसे कहते हैं डिसॉल्व जोना पेल्यूसिडा. ओके, फिर यहाँ पे सेकेंड CPE कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डिग्रेड्स कोरोना रेडिएटर. CPE कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डिग्रेड्स कोरोना रेडिएटा, ठीक है. फिर यहाँ पे हेल्यूरोनिडेज यहाँ पे हेल्यूरोनिक एसिड है. हेल्यूरोनिडेज डिसॉल्व हेल्यूरोनिक एसिड बिटवीन कोरोना रेडिएटा. पहले कोरोना रेडिएटा, ठीक है, डिग्रेड्स कोरोना रेडिएटा. फिर उसके बाद यहाँ पे हेल्यूरोनिक एसिड है. हेल्यूरोनिडेज डिसॉल्व हेल्यूरोनिक एसिड बिटवीन कोरोना रेडिएटा. ओके, ये फिर जोना पेल्यूसिडा. यहाँ पे पेरीविटलाइन स्पेस ये हो गया, ठीक है. सबसे पहले ZP2 ZP3 रिसेप्टर्स, फिर उसके बाद CPE कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, फिर उसके बाद हेल्यूरोनिडेज डिसॉल्व हेल्यूरोनिक एसिड बिटवीन कोरोना रेडिएटा सेल्स. हेल्यूरोनिडेज डिसॉल्व हेल्यूरोनिक एसिड बिटवीन कोरोना रेडिएटा सेल्स. dissolve hyaluronic acid between corona radiata cells. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे कोन ऑफ रिसेप्शन फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बनता है फर्टिलाइजेशन कोन. ओके, कोरोना रेडिएटा होगा, ठीक है. फिर यहाँ पे हेल्यूरोनिडेज डिसॉल्व हेल्यूरोनिक एसिड बिटवीन कोरोना रेडिएटा सेल्स.
ऐसे ही कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया हेल्यूरोनिडेज, डिसॉल्व हेल्यूरोनिक एसिड बिटवीन कोरोना रेडिएटर सेल्स, ओके। फिर यहाँ पे कोन ऑफ रिसेप्शन फर्टिलाइजेशन, कोन ऑफ रिसेप्शन बता, ये अंदर चला गया। अब बना यहाँ पे कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन, ओके। एंड देन ये जब आ चुका है तो फिर अब यहाँ पे एक रिएक्शन स्टार्ट होता है, एक रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कोन बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद MPF डिग्रेड मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो था ये डिग्रेड हुआ, और फिर अब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड, और यहाँ पे ओवम बन गया एन हैप्लॉइड, और फिर यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी एन बन गया, सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ आया, और अब ये डिग्रेड होने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही अंदर आता तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, सोडियम का यहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ, डीपोलराइजेशन होगा यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम अंदर आया, ठीक है। डिपोलराइजेशन होता है तो फिर यहाँ पे हाँ, पहले तो ऐसे भी सेल के अंदर पहले माइनस होता है, बाहर प्लस, जैसे डिपोलराइजेशन और सोडियम अंदर होता है, अब अंदर प्लस हो गया, बाहर माइनस, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी टेम्प्रोरी प्रोसेस है ये, 1 मिनट में ये काम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रो न्यूक्लियस, हाँ ये टेम्प्रोरी प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये मेल प्रो न्यूक्लियस है, ठीक है, प्लस यहाँ पे फीमेल प्रो न्यूक्लियस आया, ये दोनों मिलकर यहाँ पे जाइगोट बन जाता है 2n। हाँ, जैसे ही ये डिपोलराइजेशन हो गया, पहले फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी हो गया, टेम्प्रोरी प्रोसेस। फिर इसके बाद यहाँ पे होता है कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, कॉर्टिकल रिएक्शन में होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, कॉर्टिकल रिएक्शन में यहाँ पे होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। परमानेंट प्रोसेस है ये, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, और फिर यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है फिल्ड विथ म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस एंजाइम्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फिल्ड विथ म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस एंजाइम्स, ठीक है। यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होता कॉर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, परमानेंट प्रोसेस है ये, हाँ, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी परमानेंट प्रोसेस है ये। यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या भरा हुआ था, म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस एंजाइम्स, तो यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आता है, कैल्शियम अंदर आया, और यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, तो फिर जो भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में ये इसमें भर दिया, तो अब यहाँ पे ये परमानेंट ब्लॉक हो गया, ओके। यहाँ पे जोना रिएक्शन इसे कहते हैं, ठीक है। रिपेयर इटसेल्फ, इट हार्डन्स टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, ओके। जाइगोट 2n हो गया, यहाँ पे sin carry-on zygote 2n, zygote यहाँ पे 2n है, sin carry-on, ठीक है। फिर यहाँ पे एम्फी मिक्सेस हुआ, 23 फीमेल क्रोमोसोम और यहाँ पे 23 मेल क्रोमोसोम है, यहाँ पे इसका मिक्सेस हुआ। सबसे पहले sin carry-on, पहले zygote बना, ठीक है, sin carry-on, फिर यहाँ पे एम्फी मिक्सेस, दोनों क्रोमोसोम मिक्स हो गया, ओके। देन हो गया लाइफ स्पैन ऑफ ओवम 24 आवर्स और 1 डे। लाइफ स्पैन ऑफ ओवम 24 आवर्स, लाइफ स्पैन ऑफ ओवम 24 आवर्स और 1 डे, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ यहाँ पे स्पर्म 48 to 72 आवर्स और 2 to 3 डे इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। SCG यहाँ पे ये क्या था, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। कॉर्टिकल रिएक्शन एंड जोना रिएक्शन कंस्टिट्यूट स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, हाँ, कॉर्टिकल रिएक्शन एंड जोना रिएक्शन कंस्टिट्यूट स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जो ये हो गया कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे जोना रिएक्शन कंस्टिट्यूट स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये परमानेंट प्रोसेस, ओके। cleavage after entry of sperm into ovum, there will be fertilization which will lead to formation of a zygote. After entry of sperm into ovum,
after entry of sperm into ovum, there will be fertilization which will lead to the formation of zygote. It will undergo cleavage, mitotic division, and the resultant daughter cells are called blastomeres. Mitotic division and the resultant daughter cells are called blastomere. Mitotic division interphase is without G1 and G2 phase. माइटोटिक डिवीजन इंटरफेज इज विदाउट G1 एंड G2 फेज. हाँ, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो विदाउट G1 एंड G2 फेज होता है. जोना पेल्यूसिडा remain intact. Size and volume of embryo remains the same like zygote. Cytoplasm content decrease, DNA content increase, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाता. बिल्कुल. ये यहाँ पर हो गया एम्ब्रियोनल पोल और इधर हो गया ये क्या है ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, इधर हो गया एम्ब्रियोनल पोल और इधर हो गया अब एम्ब्रियोनल पोल. ओके, यहाँ पे सेल्स ऑफ रॉबर इसे कहेंगे. ठीक है, और यहाँ पे इनर सेल मास है. ये इनर सेल मास स्टेम सेल से एम्ब्रियो कहते हैं. ठीक है, ये एम्ब्रियो ब्लास्ट. ये हो गया जोना पैल्यूसिडा. ओके, यहाँ पे ये है ब्लास्टोसील. यहाँ पे ये इनर सेल मास है. बिल्कुल, यहाँ पे ये इनर सेल मास है. स्टेम सेल ये आगे चल के एम्ब्रियो बनता है. यहाँ पे ये हो गया जोना पैल्यूसिडा का ये लेयर है. ठीक है, यहाँ पे ये हो गया ब्लास्टोसील. यहाँ पे जो खाली जगह है ब्लास्टोसील. हाँ, इस पूरे को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट. ये ब्लास्टोसील, ये जोना पैल्यूसिडा. यहाँ पे इनर सेल मास जो क्या चल के स्टेम सेल कहते हैं, जिससे एम्ब्रियो बनेगा. ओके, एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे गया सेल ऑफ रॉबर. ब्लास्टोसिस्ट है ये. ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट और यहाँ पे नीचे में इनर सेल मास. ये हो गया इधर ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, यहाँ पे इनर सेल मास है. ठीक है, इसे पूरे को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. और ये हो गया जोना पैल्यूसिडा. ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट secrete enzyme and make a hole in जोना पैल्यूसिडा. Trophoblasts secrete enzymes and make a hole in Zona pellucida. यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट secrete enzyme and make a hole in Zona pellucida. ठीक है, sometimes during this stage blastocyst divide into two parts. Monozygotic twins बन जाता है identical twins. Okay, यहाँ पे trophoblast cells are highly sticky in nature. That's why Zona pellucida remains intact to prevent implantation at unwanted site. Decidua temporary, इसे अभी क्या कहेंगे, decidua कहेंगे. ठीक है, ये यूट्राइन कैविटी है. You get decidua basalis, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा. ये हाँ बिल्कुल डेसिडुआ बेसालिस. यहाँ पे गया डेसिडुआ कैप्सुलरिस, फिर ये डेसिडुआ पैरिटालिस. ये हो गया डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पैराइटालिस. ओके, इम्प्लांटेशन आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन. इम्प्लांटेशन कब होता है? आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है. ओके, होमोनोजाइगोटिक ट्विंस हो गया, आइडेंटिकल ट्विंस. अब यहाँ पे डाइजाइगोटिक ट्विंस कब बनता है? 2 ओवा प्लस 2 स्पर्म मिलकर यहाँ पे 2 जाइगोट बनता है. ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रैटर्नल ट्विंस इसे कहते हैं क्योंकि ये दोनों नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बनता है. हाँ, क्योंकि 2 अलग अलग ओवम और स्पर्म से बनाए 2 अलग अलग जाइगोट. डेट्स व्हाई ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है. ओके, सिंस आइशियोट्रोफोब्लास्ट नॉन डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज. सिंस आइशियोट्रोफोब्लास्ट non-distinct cell
Since isotrophoblast non-distinct cell boundaries, ये हो गया यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज. अच्छा वो हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट सिंस आइसियोट्रोफोब्लास्ट, और यहाँ पे ये हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज. यहाँ पे बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, यहाँ पे एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट, ये हो गया यहाँ पे एपिब्लास्ट, ये हो गया हाइपोब्लास्ट. यहाँ पे ये एपिब्लास्ट प्रिमिटिव एक्टोडर्म, एपिब्लास्ट प्रिमिटिव एक्टोडर्म, एपिब्लास्ट प्रिमिटिव एक्टोडर्म, एपिब्लास्ट हो गया यहाँ पे प्रिमिटिव एक्टोडर्म, प्रिमिटिव एक्टोडर्म. ठीक है, यह एपिब्लास्ट प्रिमिटिव एक्टोडर्म. फिर यहाँ पे ये हो गया हाइपोब्लास्ट प्रिमिटिव एंडोडर्म. इस पूरे को कहते हैं इनर सेल मास डिवाइड इनटू एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. इनर सेल मास से ही ये बना है डिवाइड होके एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट. एपिब्लास्ट हो गया प्रिमिटिव एक्टोडर्म और यहाँ पे ये है प्रिमिटिव एंडोडर्म. कौन सा? हाइपोब्लास्ट. ठीक है, चारों के लिए हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज, ये हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट. ओके, फिर यहाँ पे सिंस आइसोट्रोफोब्लास्ट बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बन चुका है. ओके, अब फिर इधर सिंस आइसोट्रोफोब्लास्ट और यहाँ पे ये साइटोट्रोफोब्लास्ट. इसमें अब यहाँ पे amniogenec cells from epiblast amniogenec cells from epiblast, amniogenec cells from epiblast, amniogenec cells from epiblast. यहाँ पे हो गया एमनियोजेनिक सेल्स. ठीक है, फ्रॉम एपिब्लास्ट, ये एपिब्लास्ट से बना है एमनियोजेनिक सेल्स. फिर यहाँ पे हो गया एमनियोटिक कैविटी, हाँ एमनियोटिक फ्लूइड इसमें प्रेजेंट है. ओके, ये हो गया यहाँ पे एपिब्लास्ट और ये नीचे है हाइपोब्लास्ट. ये साइटोट्रोफोब्लास्ट और ऊपर वाला है वो सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट. यहाँ पे ये एपिब्लास्ट और नीचे हो गया हाइपोब्लास्ट. ये हो गया यहाँ पे एपिब्लास्ट, ये यहाँ पे है एपिब्लास्ट. ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया हाइपोब्लास्ट. हाइपोब्लास्ट ये हो गया हाइपोब्लास्ट. ठीक है, फिर यहाँ पे एपिब्लास्ट. फिर यहाँ पे ये एमनियोजेनिक सेल्स फ्रॉम एपिब्लास्ट, एमनियोजेनिक सेल्स फ्रॉम एपिब्लास्ट, ठीक है. फिर यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी बन गया, एमनियोटिक फ्लूइड ये एपिब्लास्ट से बना था. ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे में हाइपोब्लास्ट से आगे चल के बना प्राइमरी यॉल्क सैक बना हाइपोब्लास्ट से आगे चल के. ठीक है, सेल फ्रॉम हाइपोब्लास्ट. ओके, प्राइमरी यॉल्क सैक ब्लड सेल फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है. प्राइमोडियल जर्म सेल फॉर्म हो रहा है. जर्मिनल एपिथेलियम यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, ओके. फिर अब यहाँ पे ये धीरे धीरे आगे चल के यहाँ पे कॉरियोनिक विलाई बन चुका है, ओके.
फिर यहाँ पे कॉरियन डेवलप हो गया है, कॉरियन। ये बी से ये मेसोडर्म, ये चारों बगल है, हाँ मेसोडर्मल ऑरिजिन वाला। ये कॉरियन जो है यहाँ पे ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, आउटसाइड ट्रोफोब्लास्ट, और ये अंदर वाला मेसोडर्म है, इनर, ठीक है। फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, अच्छा ये फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है, ठीक है। कॉरियन हो गया, कॉरियन हो गया। ये यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एमनियोटिक सेल, एमनियोटिक कैविटी एंड एमनियोटिक फ्लूइड, ये हो गया यहाँ पे इपीब्लास्ट, प्रिमिटिव इक्टोडर्म, हाइपोब्लास्ट, प्रिमिटिव एंडोडर्म, ठीक है। स्फेलको प्लूरिक, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सेकेंडरी यॉल्क सैक, इसे कहेंगे ये यॉल्क सैक, यॉल्क सैक। ये यहाँ पे मेसोडर्म है, बाहर वाला मेसोडर्म, और अंदर वाला यहाँ पे इंडोडर्म है, ठीक है। इंडोडर्म इनसाइड और बाहर वाला इंडोडर्म इनसाइड और बाहर वाला मेसोडर्म आउटसाइड, ठीक है। यॉल्क सैक, ये जो है यॉल्क सैक, मेसोडर्म आउटसाइड, ये हो गया यहाँ पे मेसोडर्म आउटसाइड, मेसोडर्म आउटसाइड, मेसोडर्म आउटसाइड, मेसोडर्म आउटसाइड, मेसोडर्म आउटसाइड, और यहाँ पे इंडोडर्म इनसाइड, इंडोडर्म इनसाइड। ये यहाँ पे हो गया यॉल्क सैक, ये यहाँ पे यॉल्क सैक है, ठीक है। बाहर वाला हो गया मेसोडर्म, बाहर वाला हो गया मेसोडर्म आउटसाइड। यॉल्क सैक, ठीक है। ये बाहर हो गया मेसोडर्म, बाहर हो गया मेसोडर्म आउटसाइड, ठीक है। मेसोडर्म आउटसाइड, और यहाँ पे इंडोडर्म इनसाइड, इंडोडर्म इनसाइड, किसमें, यॉल्क सैक में, यॉल्क सैक में, ओके। एलेंटॉइस रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। और फिर ऊपर वाला पार्ट बचा है एमनियन, कॉरियन हो गया, एमनियन और यॉल्क सैक। अब बचा क्या है, एमनियन। यहाँ पे आउटर हो गया मेसोडर्म, ठीक है। और फिर इनर हो गया यहाँ पे इक्टोडर्म इनर हो गया किसमें, एमनियन में, एमनियन। इसका काम क्या है, प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। रेगुलेट फीटल टेम्परेचर, शॉक एब्जॉर्वर की तरह ये काम करता, ओके। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ओके। Gastrulation involves two step. 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 ये यहाँ पे हो गया एपिब्लास्ट, यहाँ पे हो गया हाइपोब्लास्ट, ठीक है। प्रिमिटिव स्ट्रिक, ये इधर हेड इधर टेल, ठीक है। ये प्रिमिटिव स्ट्रिक, गैस्ट्रेशन बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिमिटिव स्ट्रिक, ओके। एपिब्लास्ट इज द सोर्स ऑफ ऑल जर्म लेयर, एपिब्लास्ट इज द सोर्स ऑफ ऑल जर्म लेयर, एपिब्लास्ट इज द सोर्स ऑफ ऑल जर्म लेयर, ओके। एंडोडर्म इज फॉर्म्ड फर्स्ट, Epiblast is the source of all germ layer. Epiblast is the source of all germ layer. Epiblast is the source of all germ layer. Okay. Endoderm is formed first. Endoderm is formed first. Epiblast is the source of all germ layer. Epiblast is the source of all germ layer. ठीक है. Endoderm is formed first. Endoderm is the formed first. ठीक है. ये हो गया यहाँ पे gastrula stays. यहाँ पे हो गया ectoderm, mesoderm, endoderm, ectoderm,
outer, ectoderm, outer, mesoderm, middle, endoderm, inner. ectoderm, outer, mesoderm, middle, endoderm, inner, ठीक है. Obliteration of blastocele represent termination of gastrulation. Obliteration of blastocyst, obliteration of blastocyst, obliteration of blastocyst represent, obliteration of blastocyst, obliteration of blastocyst represent termination of gastrulation, termination of gastrulation. फ्यूचर इक्टोडर्म, फ्यूचर इक्टोडर्म यहाँ पे हो गया मीजोडर्म, ठीक है. और फिर यहाँ पे फ्यूचर इंडोडर्म, फ्यूचर इंडोडर्म, ठीक है. obliteration of blastocyst, obliteration of blastocyst represent termination of gastrulation. Trophoblast cell secrete HCG. Trophoblast cells secrete HCG, human chorionic gonadotrophin, human chorionic gonadotrophin. HCG release and maintain corpus luteum. प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों सेक्रेट करवाता है, बिल्कुल. ट्रोफोब्लास्ट सेल, अच्छा यही सेक्रेट करता है एससीजी. हाँ. प्रेजेंस ऑफ एससीजी इन यूरिन इंडिकेट प्रेगनेंसी. ग्रेविडेक्स टेस्ट, ग्रेविडेक्स टेस्ट, ठीक है. यहाँ पे हो गया प्लेसेंटा, यहाँ पे ये है प्लेसेंटा, ठीक है. इधर हो गया ये इधर हो गया मैटरनल पार्ट, इधर हो गया डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस मैटरनल पार्ट ऑफ अ प्लेसेंटा, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है ये इधर, ठीक है. डेसिडुआ बेसिलिस. और इधर हो गया ये कॉरियोनिक, इधर हो गया ये कॉरियोनिक फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा. कॉरियोनिक फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, कॉरियोनिक फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा. हाँ, कॉरियोनिक फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, कॉरियोनिक फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा. हाँ, इधर ये है कॉरियोनिक फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा और इधर ये डेसिडुआ बेसिलिस मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा. ओके. यहाँ पे ये है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वेन्यूल, एंडोमेट्रियम वेन्यूल और इधर एंडोमेट्रियम आर्टरीज. ओके. हीमोकोरियल प्लेसेंटा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा. ये इधर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है. ओके. यहाँ पे हो गया कॉरियोनिक विलाई, कॉरियोनिक विलाई. ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है. अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड. यहाँ से CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गया और ऑक्सीजन इसमें आ गया, ठीक है. मतलब ऑक्सीजन इधर अम्बिलिकल आर्टरीज और ये था वेन. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर आ गया और ऑक्सीजन आया था, ये यहाँ के अंदर आ गया, ठीक है. यूट्राइन टिश्यू में आया पहले ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन ये अंदर आ गया. ओके. अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ठीक है. अम्बिलिकल आर्टरीज, यहाँ पर हो गया अम्बिलिकल आर्टरीज दो है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अम्बिलिकल आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरीज हो गया, ठीक है. अम्बिलिकल आर्टरीज हो गया दो गो, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और यहाँ पे अम्बिलिकल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. हाँ, तो पूरे बॉडी पार्ट्स में फैलेगा. और अम्बिलिकल आर्टरीज वहाँ पे भी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. अम्बिलिकल आर्टरीज में वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दो अम्बिलिकल आर्टरीज है, ठीक है. आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन 7 दिन बाद होता था ना. आफ्टर इम्प्लांटेशन कॉरियन forms a finger-like projection called chorionic villi, which is surrounded by uterine tissue and maternal blood. After implantation, chorion forms a finger-like projection called chorionic villi,
which is surrounded by uterine tissue and maternal blood. Chorionic villi and uterine tissue interdigested with each other to form a structural and functional unit between maternal blood and fetus is known as placenta. Placenta joins to the fetus with the help of umbilical cord, carry substance to and from the embryo. ठीक है. Function of placenta: provide oxygen and nutrient to the embryo, remove carbon dioxide and excretory waste of the embryo. Okay. Placenta. Placenta. It also secrete some hormones. HCG हो गया. Placenta makes hormones second or and third trimester. कौन कौन सा? HCG, progesterone, estrogen, HPL, CRH, corticotrophin releasing hormone और chorionic थायरोफिन. ठीक है. ये हो गया प्लेसेंटा मेक्स हार्मोन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ओके. फिर इधर कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर. Corpus luteum secretes progesterone, estrogen, inhibin, relaxin. Corpus luteum secrete first trimester. Corpus luteum secretes first trimester. Progesterone, estrogen, inhibin, relaxin. Corpus luteum secretes first trimester. Corpus luteum secretes first trimester. Corpus luteum secrete Corpus luteum secretes first trimester. Corpus luteum secretes first trimester में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनिबिन, रिलैक्सिन. Progesterone, estrogen, inhibin, relaxin. Corpus luteum secrete here. Progesterone, estrogen, inhibin, relaxin. अच्छा. Placenta. It also secretes some hormones. HCG, human chorionic gonadotrophin rescue and maintain corpus luteum. secrete progesterone, estrogen. ठीक है. ग्रेविडेक्स टेस्ट में याद है. ठीक है. अब उसके सेकेंड है HPL human placental lactogen और HCG human chorionic somatomamotrophin. ठीक है. prepare mammary gland for lactation. HPL human placental lactogen. ठीक है. prepare mammary gland for lactation. enhance protein synthesis in mother maternal growth. Enhance protein synthesis in mother maternal growth. ठीक है. increase transfer of glucose from mother to fetus. enhances protein synthesis in mother maternal growth. ठीक है. increase transfer of glucose from mother to fetus. increases transfer of glucose from mother to fetus. increases transfer of glucose from mother to fetus. increases transfer of glucose
increases transfer of glucose from mother to fetus, increases transfer of glucose from mother to fetus, increases transfer of glucose from mother to fetus, increases transfer of glucose from मदर टू फीटस, ठीक है. रिलैक्सिन increases transfer of glucose from mother to fetus. Okay. Relaxin, initially it is secreted by corpus luteum ovary and later secreted by placenta and corpus luteum. Relaxes myometrium contraction during pregnancy. Relaxes or dilates cervix. Relaxes or dilates cervix 2 centimeter to 10 centimeter, or फिर relaxes pubic symphysis at the end of pregnancy. Okay. Estrogen, progesterone, thyroxine, cortisol. Estrogen, progesterone, thyroxine, cortisol. Thyroxine increase BMR, ठीक है. Estrogen, progesterone, thyroxine, cortisol, they are increases to manifold during pregnancy. Progesterone, estrogen ratio is high during pregnancy. Estrogen, progesterone, thyroxine. Estrogen, progesterone, thyroxine. Estrogen, progesterone, thyroxine, cortisol, they are increases to manifold during pregnancy. They are increases to manifold during pregnancy. Estrogen, progesterone to estrogen ratio is high during pregnancy. Progesterone is in more amount with respect to estrogen during pregnancy. Gestation event, normal human. Gestation event, normal human pregnancy last for 9 months, 270 days, 9 month में अप्रॉक्स ले लेते हैं 30 दिन, तो फिर 3 9 से 27, 270 days, ठीक है. After 1 month, embryo's heart is formed. First sign of growing fetus is listened through stethoscope. ठीक है. After 2 month, limbs and digits are formed. After third month, after first trimester, means third month, all the major organ system are formed. Example, limbs, external genitalia are well developed. Okay. First trimester is more susceptible for teratogen, monster forming agent. Example, thalidomide cows, Phocomelia seal like limbs. After 5 month, first movement of fetus. After 5 month, first movement of fetus, ठीक है. Appearance of hair on head. After 5 month, first movement of fetus. ठीक है. Appearance of hair on head. कि 5 में क्या, फर्स्ट में हार्ट बीट सुनाई दिया था, सेकेंड में लिम्स एंड डिजिट्स
आर फॉर्म्ड, ठीक है। थर्ड में मेजर ऑर्गन्स वगैरह हो गया था, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया, 3 हो गया। 4, 5, 5 में मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, ओके। फिर आफ्टर एंड ऑफ 6 मंथ्स, आफ्टर end of 6 month, second trimester, fine hairs appear on after end of 6 month, after 6 month, after end of 6 month, after end of 6 month मतलब second trimester, fine hairs appear on body, fine hairs appear on body, eyelids separate and eyelashes are formed, okay। Fine hairs appears on body, fine hairs appears on body, eyelids separate and eyelashes are formed। Fine hairs appear on body, fine hairs appear on body, fine hairs appear on body, eyelids separate and eyelashes are formed। After end of 6 month, after end of 6 month, second trimester, fine hairs appear on body, fine hairs appear on body, eyelids separate and eyelashes are formed। Fine hair appear on body, fine hair appears on body, eyelids separate and eyelashes are formed, okay। फिर after 9 month delivery of baby, okay। Parturition, progesterone is a pregnancy hormone, it keeps uterine quiet so that fetus can develop inside uterus, so we want to nullify the effect of progesterone, it is done by increased amount of estrogen, okay। पार्चुरेशन ये क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये इधर फीटल हाइपोथैलेमस और ये प्लेसेंटा हो गया, ये CRH निकला फीटल हाइपोथैलेमस से, और यहाँ पे प्लेसेंटा, यहाँ क्या निकल रहा है? CRH कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। एंटीरियर पिट्यूटरी, ये कहाँ पहुँचा? एंटीरियर पिट्यूटरी, स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी stimulate anterior pituitary for release of ACTH, adrenocorticotropic hormone। ये स्टिमुलेट क्या? एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये यहाँ पे कॉर्टिसोल बना रहा। डेवलप लैसीथीन सर्फेक्टेंट इन फीटल लंग्स, मैचुरेशन ऑफ फीटल लंग्स, ओके। और दूसरा यहाँ पे DHEA, ये प्लेसेंटा कन्वर्ट DHEA इनटू एस्ट्रोजन, अच्छा। डिहाइड्रो इपी एंडोस्टेरॉन, DHEA, यहाँ पे प्लेसेंटा कन्वर्ट DHEA इनटू एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीजेस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स टू मैनिफोल्ड इन मायोमेट्रियम, DHEA प्लेसेंटा कन्वर्ट्स एस्ट्रोजन, DHEA से यहाँ पे प्लेसेंटा कन्वर्ट्स इनटू एस्ट्रोजन की यहाँ पे अमाउंट बढ़ रही है, ठीक है। DHEA प्लेसेंटा कन्वर्ट कर दिया DHEA को एस्ट्रोजन में, तो एस्ट्रोजन के अमाउंट बढ़ रही है। इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स टू मैनिफोल्ड इन मायोमेट्रियम, increase oxytocin receptors to manifold in myometrium. These receptors respond to plasma level of oxytocin and induces mild uterine contraction. Fetal ejection reflex
हाँ, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, ये दोनों मिलके ये रिफ्लेक्स एक्शन करता। कौन? फुली डेवलप्ड फीटस और फिर प्लेसेंटा, ठीक है। फीटल इज एक्शन रिफ्लेक्स, इट स्टिमुलेट मैटरनल पिट्यूटरी फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, it stimulate maternal pituitary for release of oxytocin, it stimulate maternal pituitary, it stimulate maternal pituitary for release of oxytocin, stimulate more contraction in myometrium, it also stimulate uterus for release of prostaglandin, enhance the contraction in uterus, it stimulate further release of oxytocin from maternal pituitary, it stimulate vigorous contraction in myometrium which leads to expulsion of baby। तो यहाँ पे डिलीवरी हो गया, ठीक है। फीटल हाइपोथैलेमस और प्लेसेंटा रिलीज CRH कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर ये एंटीटरी पिट्यूटरी पे एक्ट किया, फिर यहाँ पे ACTH निकला, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फिर ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे यहाँ कॉर्टिसोल निकला, तो फिर फीटल के लंग्स में यहाँ पे सर्फेक्टेंट डेवलप कर रहा, और फिर यहाँ पे ये DHEA से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है इन मायोमेट्रियम में, तो यहाँ पे माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आया। ये यहाँ पे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा ये दोनों मिलकर देता है, ठीक है। फिर ऑक्सीटोसिन ये और कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा, ठीक है। फिर डिलीवरी हो गया। इवेंट इन पार्चुरेशन, एस्ट्रोजन इज टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो इंक्रीज, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन से, सीखे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की लेवल इंक्रीज हो गई, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो गया, ओके। डायलेशन स्टेज 2 to 12 hours, uterine contraction involuntary and occur at long interval, uterine contraction involuntary and occur at long interval, डायलेशन ऑफ सर्विक्स 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एमनियन इज रैप्चर वाटर बैग जिसे कहते हैं, ठीक है। 2 to 12 आवर्स यहाँ पे डायलेशन स्टेज कितना है? 2 to 12 आवर्स। यहाँ पे डायलेशन स्टेज डायलेशन स्टेज 2 to 12 आवर्स, डायलेशन स्टेज 2 to 12 आवर्स, डायलेशन स्टेज 2 to 12 आवर्स, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलंटरी एंड अकर एट लॉन्ग इंटरवल, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन involuntary and occur at long intervals, uterine contraction involuntary and occur at long interval। यहाँ पे डायलेशन हो गया 2 to 12 आवर्स, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलंटरी, and occur at long interval, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलंटरी होता है ये, and occur at long interval, dilation of cervix 10 centimeter, amnion is rupture water bag कहते हैं इसे, ठीक है। amnion is rupture water bag कहते हैं इसे, ठीक है। dilation of cervix 10 centimeter, uterine contraction involuntary and occur at long interval, uterine contractions involuntary, uterine contractions involuntary, and expulsion stage 20 to 60 minutes का ये होता है, ठीक है। vigorous contraction in uterus leads to expulsion of baby, umbilical cord is cut, placenta stage 10 to 15 minutes में placenta is expelled out। lactation production of milk at the end of pregnancy, production of milk at the end of pregnancy। सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे इन्फेंट मेमोरी ग्लैंड को यहाँ पे निपल को सक करता है, तो फिर ये सकिंग नर्व इम्पल्स ये जाता है हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी
हाइपोथैलेमस ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज सेंड करता है, ये यहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, फिर यहाँ से मिल्क निकलना चालू हो गया, ठीक है। और फिर हाइपोथैलेमस PRH को स्टिमुलेट करता है और PIH को ये कम कर दिया, PRH को इंक्रीज़ कर दिया, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो यहाँ पे ये एंटीरियर पिट्यूटरी गया, प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ हो गया, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन बनना चालू हो गया। तो फिर अब जैसे ही सक कर रहा है तो इसमें मिल्क आ रहा है। ओके, दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।